The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good evening, all. We are live now, and this is a special webinar on decoding the Union Budget 2024. We have already done interim budget with all the joint association. There are more than 15 plus association. We'll take the name one by one later on. First, we welcome CA Piyush Chhajed, sir. Despite of his busy schedule and multiple commitment, he has given us time. We are very thankful to you, sir. Thank you for joining us. Would like to request you to give your keynote address of budget 2024, and then we'll take up the address of all the president, all the association, and then our speaker will also join. So first, sir, you are doing commendable job at institute. You are a chairman of direct tax committee at present, and also contributing in many activities. Also, you are the part of expert advisory committee, which is very important committee of institute. We have seen you working in last 3 years, almost 3 years in the past also. We are very grateful to you that you are part of our council and representing us. You are our leader. We have here more than 15 plus association. Many are from MP. There are few from Gujarat, IT Bar Association, Advocate Tax Association, Gujarat, and there are a few more. We'll take one by one all the names. Just want to tell that it is a tax advocate, and there are chartered accountant who is also a president in that. So there are advocate and the chartered accountant both are the part of this association, and obviously there are many professional of Connect Easy also joining from entire country. So would like to request you to your keynote address, sir. First cast on budget. Over to you, Piyush, sir. Thank you very much, Viraj. Very good evening to all, and good evening to all the representatives and the leaders of the various associations. I could see Pratik Agarwal ji, Nilesh Kushwaha ji, Jaideep Patel, Ashwin Bhatia ji, Mridul Waki, Mridul Arya ji, and Anil Agar. A very good evening to you. I, Piyush Chhajed, on behalf of Direct Tax Committee of ICAI, I thank you for giving me this opportunity. And this has been, in fact, first webinar. Obviously, I would be addressing another webinar at 5:30. But this is actually a first webinar. And Viraj is so close friend of me that obviously I cannot deny him, because it is a webinar at 5:30 to 7:30, which is organized by my own committee, Direct Tax Committee of ICAI. But whenever Viraj tells me, it's always my pleasure. He's doing an immensely a good job in educating various members or the professionals, not only chartered accountants, but lawyers, advocates, and other members, other important stakeholders who are always present in such way. Now, coming directly to straight to the agenda, because I know all the participants, everybody is very eager to know about the budget. Obviously, you would have heard by now, a lot of gyan has been already spread on WhatsApp. The market has already reacted to a certain extent, and therefore there are certain things which all people are now well aware, that there is tweaking of tax rate which has happened on long-term capital gains, short-term capital gains, because that could be felt when the budget speech was going on and the market was reacting. But hereafter also market recovered. Obviously, when it comes to a budget on an holistic, before I just give my certain comments on direct tax, that's 2 or 3 important. It's quite a balanced budget, which I feel. The most important thing which I liked of this budget, because this was 7th budget of the Honorable Finance Minister, and 11th budget, I would say, of the same government, NDA government, headed by the BJP. But 3 important things which they have recognized this time, that youth skilling is very important. Without youth skilling, nothing can move. If your economy has to grow, country has to grow, youth has to be skilled. And they have done a very good provision, good schemes have been proposed in this particular budget. So I feel a very positive move in this regard. Number 2, there is an economic policy framework which is proposed, that they will come with some economic policy framework, which is very important. It just signifies that government is aware that the economy in which the India is placed, obviously it is growing well compared to last 2 years. It may be little here and there, little percentage wise your fiscal deficit has improved comparatively, but still there has to be a proper policy framework when considering a long-term scenario, with India being a big country, 140-50 crores of population. There has to be a framework.
It cannot be a 1-year idea, 3 years idea, or a 5 years idea. And therefore, it's a good concern which they have noted. They're aware of it, and I'm sure this will help the country in the long run. Third is they have also recognized the job opportunities. If you look at economic survey which came up yesterday, in that also this recognition was done that there is a need for creation of jobs. There is a need for creation of internship. In this particular budget today, there was a provision which has been made that they will create and 1 crore internship should be provided by the corporates. In fact, in the economic survey itself, this was mentioned. So that was an expected move, but that has been recognized. So 3 important pillars if the government themselves recognize, it's very important. Apart from this budget, if you have gone through an economic survey, all the participants, you may have noted that government in its preface also, that is the chief economic advisor, has mentioned that the idea of the government is to regulate less, to do ease of doing business. In fact, it has also gone to state that the power is the most prized possession of the government, but the government is willing to let it go. And that's the important statement which is made in the preface of the economic survey, which I have noted very well. And when I actually heard the budget speech, I felt that is an idea also, because the amendments in the tax are similar to that. Of course, now when I come to a direct tax, I would say that obviously history repeats somewhere. Yes, the old wine in new bottle. I'll just take in 2 or 3 very important examples first, which has been again coming back. The most important thing would be reopening of assessments. 3 years, 4 years before only, the total mechanism of reopening, issuance of notice, new section 148 capital A was brought in. Search and survey, which was happening under 153A, had been brought in under 148A. Now, again, we are going back to a scheme of the search assessment, which was prevalent 20 years back. The seniors participants would know, which we used to call a block assessment, wherein for a particular block period of 10 years at that time. For this year, in this budget, it is proposed for 6 years period. So in case of the search happening after 1st September 2024, if the assessing officer will assess for a block period, which will be 6 years prior to the date of the search. So 6 preceding years, he has to assess it as a block. So only one particular return will be filed, one assessment will happen, wherein undisclosed income will be assessed. Obviously, this undisclosed income is proposed to be taxed at 60%. Further, a penalty could be imposed, which would be 50% of the tax amount. So effectively, there would be 30% on the undisclosed income. So if I had 60% tax rate, 30% penalty thereon, it would be 90%. That penalty can be waived, may not be imposed. In case after the search, you suo motu file, you will be given an option to file a return, and if you're filing it, then obviously the penalty will not be imposed on that portion of undisclosed income. So this scheme is very similar, which came in 2000. Obviously, when you go into a fine print more detail, it would be, but it is reverting back to that particular scheme, because the scheme of 153A, 153C actually ventured. It actually resulted into a lot of litigation. So for in a search, I have to do a 6-year separate assessment. 6 separate appeals. Now only one assessment of a one particular return for whole 6-year period as a continuous would be taken as a one assessing unit. And I think so that's a good, though it goes back to the history, but I think so it's a very nice step. Which is now the second step is, again, when I said okay, you are going back to history, is reopening. As you know, the reopening was hitherto permitted up to 4 years or up to 6 years in certain cases, which was changed after 2021, and it was brought down to 3 years in certain cases and extendable up to 10 years if the income escape was above 50 lakhs. Now again the period has been reduced. So this 10 years has window from 3 years to 10 years. Now it has been reduced, proposed to be reduced in this bill is to 5 years. So it's a very good thing according to me, because when actually 10 years, I always used to tell that reopening was always the criteria of reducing the period is to give certainty to taxpayers that if I file the return, if nothing has happened, then nothing is going to happen beyond a particular point of time. Now the 10 years was a very long period of time. Obviously, idea of 10 years was because the search was also merged into this. Now they have separated search to a block assessment, restricting it to 6 years period, which was again 10 years now. But reopening also will be restricted to 5 years period. So that's also a very good thing, which according to me will have. Third, abolition of angel tax. A tax on share premium in a very crude language on 56 to subclause 7B. Whatever shares were issued
at the price above the fair market value was being taxed under 5627B since 1st April 2012. There were amendments made whereby even the investment made by a non-residents were brought into tax. Earlier, when it came in 2012, it was not there. But subsequent amendments, 2 years or 3 years back, I do not remember the exact date, even the investments coming from non-resident was getting taxed over here. So a lot of representation was there. Our institute was continuously representing that at least you exclude non-resident, number one, or at least even if the investment is coming genuinely, you already have a provisions of section 68 deeming provisions. If they are not genuine, you can still today also tax under section 68 with a higher tax rate of 60% under 115 BBE. So there's no need of taxing it as an income from other source only because the fair market value is higher. And ultimately, if is investing at fair market value, it's a capital investment. It's capital receipt ultimately for the company. It's a tax-paid money which is coming. So I'm good that they have accepted it. Obviously, the reason given by them is to promote investments. Obviously, this will promote investments. Obviously, some may misuse it. It used to be misused, and that's why it was brought in. That's a different thing. I believe India has grown differently in last 5 years, 6 years. The misuse of this will not happen to that extent. So a very good initiative which has been done and very forthcoming by the CBDT and the government. I would say that yes, we do accept what you are saying. We don't want such taxes which do not promote business or which actually act as a roadblock for an investment in India. Startup should be promoted, new entrepreneurship be promoted, and if any tax policy is causing any headwinds, that should be removed. So that's the vision which I really appreciate, with which this 5627B has been removed. Fourth, trust also. We have been representing after 2021. It has become complicated. Finally, they have agreed that yes, they will merge this 1023C into section 11 and 12. Now, after 1st October 24, all applications will be only under section 12. 1023C will be discontinued, except applications which are pending or already you are registered. Then you will get a benefit under 1023C till the time your registration gets over under that, and then you get subsequently registered under section 12. So these are 4 or 5 important points. I don't want to touch very much in detail because I know there are speakers who will be coming up, but the capital gains tax would be discussed. Only one thing which I may not be happy with is removal of proviso in section 48 is not permitting of indexation. I think so. The value of the money has to be respected. If I bought some asset for 100 rupees, whatever may be asset, and if that has actually accreted because of the inflation, it has become 200, it should not be taxed irrespective. Of course, we'll make a post-budget suggestions will be going, because very soon we have to send within 3 days. Institute would be sending it. And one of our suggestions would be that indexation should be retained. And you may give an option. If the members may recollect, there was an option available for the shares also, unlisted shares, that you pay either 10% tax or you pay 20% after indexation. It was available. Even today for the non-residents, it is available in case of unlisted equities. I think so that would have been an ideal step. You give an option, you pay 12.5% tax, that is the new proposed tax rate, or you pay 20% post indexation, either of. So that would have been my take on it. But overall, the budget is good. Obviously, the tax rates has been tweaked. I would just again take you through an IMF yesterday's economic survey report, where it is clearly mentioned IMF had come, International Monetary Fund, 3 weeks before the report, and stated all the countries will have to tax a capital formation, will have to tax investment income, and they will have to look into a tax rates actually. And even in the economic survey yesterday, the preface by the chief economic advisor sounded that, and I was quite hopeful that today this will come, that there would be some increase in tax rate. This is happening from 10 to 12.5% and 15% to 20% in short-term capital gain. But one would say that in certain cases, long-term has come from 20 to 10. 12.5, but that is not the case because, as I said, indexation is good. So I'll just end my note over here. This is, I'm sure the speakers will do well. They will do further deep dive. They would have already done. If I've missed, I thought these are 4 or 5 important points which I should take up. All the members, because they are all representatives of the various associations, my request to all of you would, if you have any suggestions, because please mind it, this budget session is up to 12th of August, but to my knowledge, this will be passed by Lok Sabha between 2nd and 3rd August. And hereafter, it will go to Rajya Sabha, because otherwise another budget session would come only in the winter time. So this will be passed very soon. So the post-budget memorandum has to be submitted within 3, 4, 5 days time. If you have any suggestions, please do write to the institute at dtc@icai.in. I assure you, we'll actually consolidate and we'll try to suggest within 3, 4 days. And please, you may note that generally between bill and the act, there are a lot of amendments around.
That is because of the public outcry. Because they would have missed something. Ultimately, it's a human. They would have not thought of that. So if we are able to bring into their knowledge, I'm sure they will consider to it. So thank you very much once again to all the members, all the association who have joined hands, and thank you for inviting me. Thank you, Viraj, once again. Thank you. Thank you so much, sir. Despite of your busy schedule, multiple media interview, and our own ICAI session is also at 5:30. Still, you have given time. You are as an organizer of chairman of Direct Tax Committee. We are very grateful to you, and your keynote address will really helpful in all our participants to know the more about the decoding of the budget. So thank you once again, sir. We have already our speaker also joined. CA Palak Pavagadhi, sir. Thank you so much, sir. You can leave, sir. Yes, sir. Thank you. So we have our speaker, CA Palak Pavagadhi, sir, who is a renowned national speaker. I think few of our association has already heard in physical session also. I have seen many photos also. Sir has visited Madhya Pradesh and joined a session also by the many of the association who has also joined today. We have Advocate Nilesh Kushwaji, who is the director of this entire webinar and who has connected entire Madhya Pradesh to our today's webinar. And many are joining already on LinkedIn and YouTube. We have more than 100 plus live on YouTube, and also there are many on our YouTube channel. Our more than around 200 on GoToWebinar as well. I would like to request Nilesh ji to speak a few words before we invite our speaker Palak ji in a very brief. Over to you, Nilesh ji. यस नीलेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हो सर. जी सर. नीलेश जी, और we can request any of the senior Santosh ji or Anil Agarwal ji or Mrudal Arya ji to have a few words, and also we have Mrudang Vakil ji who is from All Gujarat Federation of Tax Practitioners to welcome attendees and about the budget in brief. And after that we'll invite Palak Pavagadhi sir. Yes, Mrudal Arya ji, please. विराग सर. यस प्लीज बोलिए सर. सर कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है कि अगर पलक सर हिंदी में बोले तो ज्यादा लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एमपी वाले ज्यादातर हिंदी वाले हैं. यस सर वीडियो चालू रखेंगे सर. just to have a welcome address from the presidents of there are so many association. तो उसके लिए would like to request Mrudang ji, Advocate Mrudang Vakil ji, who is from All Gujarat Federation of Tax Consultant. मृदांग जी, आप आपकी आवाज आप दिख रहे हो, आपकी आवाज भी आ रही है सर, आप बोल सकते हो. Am I audible now? हाँ मृदांग जी, please. Yes. I heartily welcome all the participants, all the professionals, all the organizing office bearers from the joining association, and today's eminent faculty, our own, my close friend, close to heart, and our own CA, Mr. Palak Pavagadhi sir. And I also welcome CA Virag Shah, who is the leading initiative, taking initiative to organizing this budget meeting on very first day after the announcing of the budget. We have already Palak bhai to deal with the topic, but just let me clarify that this budget, after the Modi government has taken the charge 3.0, and from the floor of the parliament, Nirmala Ben has announced some proposals of direct taxes, and for that we have invited C. Palak bhai to deal with the subject. And with these words, I invite and I welcome all the participants. Thank you very much. Thank you. नीलेश जी, आपका आवाज आ सकता है क्या अभी? हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर बोलिए सर. नमस्कार
सर आज नमस्कार। बजट आया है और आज विराग सर ने एक बहुत ही अच्छा वेबिनार किया है। पिछले हम 4 से 5 साल से बजट वाले दिन वेबिनार करते आए हैं और इस बार पलक पवागड़ी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। जी धन्यवाद सर, आप सूत्रधार हो सबको एक साथ जोड़ने के लिए पूरे मध्य प्रदेश को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। So now I think we should immediately request Palak sir, because there are so many things, there are so many new things to learn from this budget, and there are so many, we can say, debatable point, controversial point, and there are many we are expecting many we can say clarification also. So we all think we'll learn from Palak sir. Thank you Palak sir. Also you are already have many very busy our today's budget day. In spite of your busy schedule, you are having many media interviews, TV interviews. Still, you have given us time. We are very thankful to you, sir. So over to you, sir, Palak sir. You can address all of us, and if required, you can share your screen as well, sir. Over to you, sir. Thank you. Good evening, everyone. Piyush Chhajed साहब, विराग भाई, आर्या साहब, प्रतीक अग्रवाल जी, नीलेश कुशवाहा जी, अनिल अग्रवाल सर, जयदीप पटेल सर, अश्विन लाखोटिया सर, रुदान भाई, my good friend, संतोष गुप्ता सर, all the office bearers, seniors and my dear professor. Budget 2024, budget 2024. 1 फरवरी को जब इंटरिम बजट आया तब ऐसा था कि अभी का जो बजट आएगा उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया था दैट आपका जो अभी नेक्स्ट बजट आएगा, निर्मला सीतारामन जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने, wherein you can expect the full budget and roadmap for 2047. और उनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़े कि गवर्नमेंट भी वही है, नॉट ओनली गवर्नमेंट भी वही है, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है, and she is delivering the full budget of this NDA government 3. बहुत सारे बदलाव। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने विराग भाई को हाँ बोली तब मुझे ऐसा था कि ये तो एक छोटे से टाइम के लिए बजट आना है, तो इतने सारे चेंजेस नहीं होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, कर लेंगे, 5, 10, 8, 15 प्रोविजन हो गए। बट पूरे कैपिटल गेन के टॉपिक को बदल दिया, या आई वुड से कि जो पीयूष छाजेड साहब ने बताया कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था वो पूरा निकाल दिया। हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक प्रोविजन को एनालाइज करें एंड अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। बट इफ आई बिगिन विथ माय प्रेजेंटेशन, एक खाली मुझे 2 मिनट देनी पड़ेगी, मैं चेक कर लूं कि whether my screen is visible or not. Sirs, whether my screen is visible? Finance Bill 2024? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, All sir. right, then we are through. The first major change. विराग भाई, मेरे पास 1 और 30 मिनट जितना है ना टाइम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. First major change is under the tax rates. New regime only. 3 लाख तक 0%, 3 से 7 5%, 7 से 10 10, 10 से 12 15, 12 से 15 20, 15 के ऊपर 30। पहला मुद्दा, ये जो चेंज किया उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। 2-3 जो मेरे मुद्दे हैं उनको अच्छी तरीके से समझना है। पहले जो 6 के 7 के बीच में 10% लगता था, उसकी जगह अभी कितना लग रहा है? 5%। एट द सेम टाइम 9 से 10 के बीच में जो 15% लगता था, उसकी जगह अभी लग रहा है कितना? 10%। मीनिंग देयर बाय, सबसे पहला महत्व का मुद्दा, अब तक कोई बंदा 15 लाख रुपए तक की आय कमाता था, इनकम कमाता था, और
ये 15 लाख रुपए के ऊपर उनका नया रेजिम एप्लीकेबल होता था। हम स्टैंडर्ड डिडक्शन पे एम्प्लॉइज पे अभी नहीं जा रहे, आई विल बी कमिंग टू दैट स्लाइटली लेटर। अगर ये पर्सन कमा रहा था कितने, एग्जैक्ट 15 लाख रुपए, तो पहले उनको जो टैक्स भरना पड़ता था वो 1.5 लाख रुपए भरना पड़ता। अभी ये पर्सन को जो टैक्स भरना पड़ेगा वो उनको खाली भरना पड़ेगा, फ्रेंड्स अगर आप चेक करोगे अपने कैलकुलेशन से तो इट इज 1,40,000। 10,000 रुपए का बेनिफिट दे दिया। वो 10,000 रुपए का बेनिफिट कहां से दिया, 6 से 7 पे 10% की जगह 5% कर दिया। एंड दूसरा चेंज किया, 9 से 10 के बीच में जो 15% लग रहा था उसका कितना कर सकता हूं, सॉरी 9 से 10 के बीच में जो 15% लग रहा था उसका कितना कर दिया, 10% कर दिया। सो उन्होंने एक्चुअली तो 1 लाख रुपए का जो टैक्स 15% से लग रहा था वो 5% में शिफ्ट किया हुआ है। अगर आप चेक करो तो, एंड दैट्स द रीजन देयर इज अ बेनिफिट ऑफ 10,000 रुपीज। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, मैडम ने कितनी जगह पे तीर मारा वो समझने का प्रयत्न। एक, हमारे इंडिया की 140 करोड़ की जनता के बावजूद रिटर्न फाइलर्स बहुत कम है। अगर ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ा के 3 लाख का 4 लाख रुपया कर दिया होता तो हमारे जो रिटर्न फाइलर है वो कम हो जाते। बिकॉज अंडर 139(1) आपको रिटर्न भरना है अगर आपकी आय, टोटल इनकम बिफोर सर्टेन डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस एक्सीड्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, उसके लिए 4 लाख कैलकुलेट होते। मैडम ने वो 4 लाख को नहीं किया, मैडम ने 3 लाख ही रखा। बट इफ यू आर अर्नर, हाई अर्नर, यू आर गिवन अ बेनिफिट। आप बोलोगे कि 4 लाख किया होता तो काफी लोग निकल जाते ना, रिटर्न फाइलिंग से निकल जाते। पर हमारा एम है, कंट्री का एम है टैक्स रिटर्न फाइलर्स के बेस को वाइडन करने का, तो वो यहां पे कंप्लाई नहीं होता। दूसरा मुद्दा, ओल्ड रेजिम एबोलिश नहीं किया है बट खाली लॉक एंड की देना बाकी रखा है ओल्ड रेजिम, क्योंकि जो जो बदलाव किए वो सब नए रेजिम में। लाइक लास्ट ईयर 87A का रिबेट लाए थे मैडम, जिसमें मैडम ने बोला था, जिसकी अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, मैडम ने बोला था कि द रिबेट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल रेजिडेंट इफ टोटल इनकम इज अप टू 7 लाख एंड योर रिबेट इज एक्चुअल टैक्स पेबल और 25,000 व्हिचएवर इज लेस। अभी यही का यही रखा है, कोई बदलाव उन्होंने रिबेट में नहीं किया है। हालांकि अभी 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपका टैक्स पेबल खाली 20,000 ही बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये 87A में थोड़ी ड्राफ्टिंग लेक्यूना है कि वहां पे 25 की अमाउंट 20 करना एडवाइजेबल था, बट वो कोई आई डोंट नो बाय मिस्टेक रह गया है या कोई इंटेंशन से रखा है। चलो मान लीजिए इंटेंशन से रखा हुआ है, तो कौन से इंटेंशन से रखा हुआ है? इंटेंशन ऐसा हो सकता था कि सर मान लीजिए मेरी इनकम 7 लाख रुपए तक की, जिसमें 1 लाख रुपए का मेरा 11,111 वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% या अभी 20% से टैक्स हो रहा है, उसके ऊपर लीगली स्पीकिंग रिबेट मिलता है। सिस्टम नहीं दे रही है, 5 जुलाई के बाद यूटिलिटी नहीं दे रही है। अगर यूटिलिटी आज देती होती तो मैंने एनालाइज ऐसे किया होता कि जो लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं उनको 87A का रिबेट 25 रखा है ना, तो बेनिफिट हो रहा है। बट यूटिलिटी नहीं दे रही है। अगर हम मान ले 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कि वॉट एवर यूटिलिटी इज गिविंग इज करेक्ट, विच मे नॉट बी द केस, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस आर मेड। आप सब इतने ऑगस्ट एसोसिएशन यहाँ पे हो, सबने बहुत अच्छे मेंबर के बेनिफिट में रिप्रेजेंटेशन किए हुए हैं, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। बट अगर ये होता तो डेफिनेटली हम मैं कह पाता कि 87A का रिबेट 25,000 का रखा, दैट इज गुड। 111A के ऊपर या बाकी कोई 20% वाला नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो उसके ऊपर मिलता प्रायर टू द अमेंडमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा एक बहुत बड़ा बदलाव सैलराइड पर्सन के लिए। मैं थोड़ा लाइटर नोट में जाऊंगा बिकॉज मुझे पता है कि सुबह से सबका डे बहुत हैवी होके रखा हुआ है, एंड दैट टू स्पेशली दोज हु आर डूइंग द स्टॉक मार्केट, माय सीनियर्स एंड माय फ्रेंड्स, बहुत हैवी डे होके रखा है क्योंकि मार्केट कहां जा रहा था, 800 डाउन एंड देन 150 डाउन एंड व्हाट नॉट, वो बहुत हैवी था। तो मैं थोड़ा लाइटर नोट में रखूं तो मेरा एक मित्र है, जॉब करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, कल ही उन्होंने लिखा है हमारे ग्रुप में कि सैलराइड वालों को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने उनको कांग्रेचुलेट करते हुए आज कॉल किया कि तेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 कर दिया। हालांकि उनकी सैलरी सरचार्ज वाली है तो उनको बेनिफिट 25,000 के ऊपर
30% टैक्स प्लस 10% सरचार्ज करके मिलने वाला है। 25,000 के ऊपर का टैक्स बेनिफिट उनका कुछ ज्यादा नहीं होगा, 7-8-9 हजार रुपए का होगा। बट ये लोग जो कह रहे थे वो एक आई वुड से छोटा सा बदलाव फॉर द सैलराइड पर्सन। अच्छा, सैलराइड पर्सन के लिए दूसरा बदलाव ये लाए, अच्छा हाँ, आई शुड बी क्लियर, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 का तभी मिलेगा जब आप नए रेजिम में जा रहे हो। ओल्ड रेजिम वालों के लिए तो लॉक एंड की में हो 50,000 रुपए का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल। दूसरा, एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता था, ये एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे तो एम्प्लॉयर को अब तक 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए का सेक्शन 36 में डिडक्शन मिलता था। एम्प्लॉय के हाथ में ये टैक्स होता था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एंड बाद में उनको मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए जितना एटीसीसीडी ब्रैकेट 2 में डिडक्शन मिलता। हालांकि ये एटीसीसीडी 2 नए रेजिम में भी मिलता है। आई शुड बी मेकिंग इट क्लियर, मैं फिर से बोल रहा हूं, एटीसीसीडी 2 क्या है? एटीसीसीडी 2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, इज अवेलेबल इन द न्यू रेजिम ऑल्सो। ये अब तक 10% था, अभी एम्प्लॉयर को खर्चा डिडक्टिबल करने के लिए भी ये लिमिट कर दी 14% सभी एम्प्लॉयर के लिए। पहले खाली ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो तो ही था, अभी सभी एम्प्लॉय के लिए, नॉट ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट के लिए भी ये 14% कर दिया। सामने प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए एटीसीसीडी 2 भी कितना कर दिया? 14% ऑफ द बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस इफ इट इज इंक्लूडेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। सो ये भी बदलाव खाली नए रेजिम वालों के लिए। अब आपने बजट अच्छे से देखा हो ना, तो मैडम ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि 17,500 का बेनिफिट मिलेगा। मैडम बोल देते फिर पता नहीं चलता है। अभी 2 साल पहले के बजट में मैडम जी ने ऐसा बोला था, 2 साल के पहले, हाँ 2023 के बजट में मैडम जी ने ऐसा बोला था कि 15,50,000 रुपए तक की इनकम होगी ना तो 55,000 का बेनिफिट मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से। और हम लोगों ने ऐसा इंटरप्रीट कर दिया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 55,000 का मिलेगा अगर 1,15,50,000 तक की इनकम हो तो। नो, ऐसा नहीं बोला था, 55,000 का बेनिफिट था, वो कैलकुलेट उस टाइम हम कर सकते थे। आज मैडम ने कहा है कि आपके नए रेजिम में अगर आप जाओगे तो आपको सैलराइड पर्सन को 17,500 जितना बेनिफिट मिलेगा। नाउ व्हाट इज दैट 17,500? आई विल क्लैरिफाई। प्री बजट, ओल्ड रेजिम का मतलब है प्री बजट, ये थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा। प्री बजट की बात करें तो 15,75,000 की आपकी सैलरी थी, आप नए रेजिम में जाते थे, 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। अभी अनाउंसमेंट नहीं है, उससे पहले तो 50 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। और आपकी इनकम बनती थी 15,25,000 रुपए। 15,25,000 रुपए के ऊपर नए रेजिम से ही टैक्स निकाले, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 एंड 15 से 15,25,000, तो आपका टैक्स पेबल बनता था 1,57,500 विदाउट 4% सेस। अभी अगर हम निकालें तो 15 लाख रुपए तक की इनकम, 15,75,000 की आपकी सैलरी की इनकम हो और आपका 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर हम ले, नए रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, तो 15 लाख रुपए की आपकी इनकम हुई, बाकी कोई इनकम नहीं है, तो आपका टैक्स पेबल 1,40,000। एंड दैट्स हाउ आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द बजट वन कैन से दैट सेम लेवल इनकम under the head salary 15,75,000, no other income, no other deduction, the person would be able to save 17,500 rupees in the tax due to the changes made by them, and that is what he has spoken. उन्होंने जो बोला है वो यही बोला हुआ है। दूसरा, नए रेजिम में माय सीनियर्स एंड फ्रेंड्स बहुत कम डिडक्शन मिलते हैं। और सर आपको कहा कि फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन 15,000 का मिलता था वो उन्होंने इंक्रीज करके कितना कर दिया? 25,000 रुपए का। एंड दैट इज अ स्मॉल चेंज मेड बाय हर। नाउ द मोस्ट रेलेवेंट, एंड इसके ऊपर मैंने जो मेरा प्रेजेंटेशन डिवाइड किया है ना, ये था इंडिविजुअल सैलराइड क्लास के लिए। 80C में कोई बदलाव नहीं है, 80D में कोई बदलाव नहीं है, 24B में कोई बदलाव नहीं है, 80EEA EEB में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, जो था वही का वही उन्होंने रखा है। क्यों वही का वही रखा है? बिकॉज ये अगर
आई वुड से एक्सपेक्टेशन तो ऐसा ही था कि ये नया रेजिम ही रेजिम रखेंगे, बट बहुत ही स्मार्टली मैडम ने ओल्ड रेजिम को भी अभी अलाइव रखा। 24-25 फाइनेंशियल ईयर के जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब कंपैरिजन जैसे आज हम रिटर्न फाइलिंग के वक्त करते हैं तो करनी पड़ती है, वैसे उस टाइम भी कंपैरिजन करनी ही पड़ेगी, बट मेजॉरिटी केसेस में इन माय हम्बल ओपिनियन न्यू रेजिम वुड बी बेनिफिशियल एंड दैट इज व्हाट मैडम ने भी आज बजट में कहा। अभी दूसरा जो महत्व का मुद्दा है मेरा वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में जो कैपिटल असेट की डेफिनेशन है उसमें थोरो चेंजेस किए। पूरा टॉपिक उन्होंने ड्रास्टिकली बदल दिया। लाइक आई विल जस्टिफाई, आई विल क्लैरिफाई। एक, मैडम ने कहा कि पहले आपका लिस्टेड शेयर्स, ZCB एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता था, तो 12 महीने का क्राइटेरिया था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, ये ओल्ड है। 24 महीने का क्राइटेरिया होता था अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड बिल्डिंग के लिए एंड अदर एसेट्स लाइक गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, स्लम सेल में पूरा यूनिट हो या पूरा बिजनेस हो, तो 36 महीने का क्राइटेरिया। अभी ये क्राइटेरिया चेंज करके जो अमेंडेड प्रोविजन है वो कहा मैडम ने, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स and units of equity oriented fund, if they are held for more than 12 months it would be long term, else it would be short term. Unlisted के लिए 24 months or less it would be short term, otherwise long term. Unlisted के साथ साथ land building भी covered है and all other assets are covered, meaning thereby units के लिए जो पहले अलग लिमिट थी वो अभी 12 महीने हो गई listed units के लिए। पहला मुद्दा, all units, be it be equity, be it be otherwise. दूसरा महत्व का मुद्दा, जो गोल्ड सिल्वर वगैरह के लिए हमारी पोजीशन होती थी कि गोल्ड सिल्वर के लिए 36 महीने देखना होता था, वो अभी हो गया 24 महीने। स्लॉम सेल के लिए पूरे बिजनेस के लिए 36 महीना देखना था, वो अभी हो गया 24 महीने। आप चेंजेस को समझने का प्रयत्न करना। अभी स्लम सेल बहुत चल रहा है। मैं हमारे गुजरात के केस के लिए आऊंगा। दोस सीनियर्स एंड माय फ्रेंड्स जॉइनिंग फ्रॉम गुजरात, आई थिंक सेम मे बी द पोजीशन एट अदर प्लेसेस, बट ये टाइम लिमिट 24 महीने कर दी, तो ये 24 महीने की टाइम लिमिट हमें अप्लाई होगी स्लम सेल में पूरा यूनिट बेचो या बिजनेस बेचो, उसके लिए भी सेक्शन 50B के लिए भी, अनलिस्टेड के लिए भी, लैंड बिल्डिंग के लिए भी, गोल्ड के लिए भी, सिल्वर के लिए। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर ये प्रोविजन को समझे तो ये 12 महीने का 12 महीने, 24 का 24 एंड 36 का क्या कर दिया 24। दूसरा महत्व का, इन लोगों ने कैपिटल गेन के ऊपर के टैक्स रेट्स, मेरे पास जो स्लाइड्स है ना उसमें आई एम एडिंग ओनली इलस्ट्रेशंस, प्रोविजंस मैं बोल रहा हूं, मैं ये अच्छे से चेंज करके जो भी मुझे रेट वगैरह ऐड करना है वो करके आई विल बी शेयरिंग विद विराग भाई, कुशवा साहब, अश्विन भाई लखोटिया साहब एंड बुदान भाई, एवरीवन, मे बी टुमारो, so that you can circulate to the members. But the major change after this long term short term, टैक्स रेट्स आर चेंज्ड। क्या चेंज किया? फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में टैक्स हो रहा था एट द रेट ऑफ 15%, वो रेट बढ़ा के कर दिया 20%। रिपीट, वो रेट बढ़ा के कर दिया 20%, एंड दैट्स द रीजन मार्केट इज रिएक्टिंग वेरी नेगेटिवली टुडे। नॉट ओनली दैट, 112A में जो आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ऊपर एसटीटी परचेज पे भी भरा हो, सेल पे भी भरा हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट 10% से लगता था वो कर दिया 12.5%। पर पहले ऐसा था कि 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर जो हो उसके ऊपर 10%, अभी 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर 12.5%। अगर एनालाइज करने का प्रयत्न करूं तो मेरे क्लाइंट ने मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला कमाया हुआ है, वो ग्रैंडफादरिंग वगैरह सब लेके, तो उनका पुराने प्रोविजन में टैक्स आता था कहना इसे 5,000 रुपए,
1,50,000 में से 1 लाख तक कुछ नहीं, बाकी के 50,000 के ऊपर 10%। अभी उनका टैक्स 1,25,000 डिडक्ट करके जो 25,000 आएगा उसके ऊपर 12.5%, दैट इज 3,125। छोटे छोटे लोगों को तो बेनिफिट ही दिया होगा। अच्छा, 112 में पहले भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ग्रैंडफादरिंग पहले भी मिलता था, ग्रैंडफादरिंग अभी भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सो 112। हाँ, हालांकि आप मुझे बताओ कि मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए मृदांग भाई बोले कि यार क्या पलक भाई ऐसे छोटे छोटे इलस्ट्रेशन आप ले रहे हो 1.5 लाख का, मेरा 10 लाख रुपए का, मृदांग भाई मैं कम अमाउंट बोल रहा हूँ, आपका उससे भी ज्यादा होगा, पर मेरा 10 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 में, उसमें से पहले 1 लाख रुपए डिडक्ट होके बैलेंस के ऊपर 10% करके 90,000 टैक्स लगता था। अभी मृदांग भाई को 8,75,000 रुपए के ऊपर 12.5% करके 1,99,000 रुपीज का टैक्स लगेगा। तो लो अर्नर्स को बेनिफिट दिया है, हाई अर्नर्स को इसमें नुकसान है। एक का सवा कर दे, लो अर्नर आर बेनिफिटेड, बट 10 का 12.5 करने पे हाई अर्नर्स आर एट डिसएडवांटेज। आप मुझे पूछो कि तो डिसएडवांटेज जो आप बोल रहे हो वो कितने के ऊपर जाए तो इट इज गोइंग टू बी अ डिसएडवांटेज। आई वुड पुट दिस वे कि अगर आप 160 170 में, आई विल ट्राई कि मैं एग्जैक्ट इसको जैसे 17,500 को रिकंसाइल करके मैंने समझाया ना, वैसा कुछ ट्राई करके समझाने का प्रयत्न मैं करूंगा इन द स्लाइड विच आई विल शेयर विथ यू कि एग्जैक्ट कहां तक का कैपिटल गेन होगा तो द टैक्स वुड रिमेन सेम, अप जाए तो क्या, डाउन जाए तो क्या। बट दिस इज वन। Second major change in the tax rate is land building, gold, silver, any sort of long-term capital gain now is going to be taxable not at 20% but at 12.5%। जो हमारे ऑनरेबल पीयूष छाजेड साहब ने कहा कि 12.5% का रेट कर दिया, वेलकम चेंज, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल दिया, दैट इज अ बिग डिसएडवांटेज। इंडेक्सेशन क्या है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मींस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट। अगर आप आज ही असेट को परचेज करने जाते हो और असेट की मार्केट वैल्यू 1 भी रुपया नहीं बढ़ी होती तो ड्यू टू द डिवैल्यूएशन ऑफ मनी और ड्यू टू द इन्फ्लेशन यू वुड हैव गॉट दिस असेट एट दिस अमाउंट, दैट इज इंडेक्स कॉस्ट। 100 रुपए की मेरी कॉस्ट हो 142,001 में, जो आज मैं खरीदने जाऊं, कोई मान लीजिए कि मेरी एसेट की प्राइस नहीं बढ़ी है, but due to devaluation of rupee or due to inflation, I will get this asset at 363, जो मेरा 363 करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है। तो that is what is the issue, that is what is the problem। फ्रेंड्स, मैं यहां पे एक इलस्ट्रेशन से समझाने का प्रयत्न करूं कि मेरा एक क्लाइंट है, उन्होंने एक रेसिडेंशियल हाउस कल बेच दिया। वो बेचारा थोड़ा टेंशन में था कि बजट आए उससे पहले बेच दो, तो उन्होंने कल रेसिडेंशियल हाउस बेच दिया जो उन्होंने उनके फोर फादर्स ने 1976 में लिया था, 78 में लिया था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1/4/2001 की 100 रुपए थी और उन्होंने मान लो कल ही दस्तावेज किया 1,000 रुपए में। तो कहना से उन्होंने कल दस्तावेज किया तो उनको 363 की इंडेक्स कॉस्ट मिले। एंड 363 कैसे? 100 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 363 इंडेक्स नंबर हमारे ईयर का divided by 100, that would be giving you 363। and आपका कैपिटल गेन आ जाए 637, जिसके ऊपर 20% टैक्स लगे 127.4। अगर वो 2 दिन रुक जाता, आज दस्तावेज करने गया होता तो कैलकुलेट करके गया होता 127.4, बिकॉज वो तो लाइन में लगा होता सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, उसने तो बजट नहीं देखा होता। बट जब बजट पढ़ता, पता चलता, तो उनको पता चलता कि इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, आपको 100 रुपए का ही डिडक्शन मिलेगा, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 900 रुपी एंड आपका टैक्स पेबल खाली 12.5%, 112 रुपए 50 पैसे। सो देयर इज अ बेनिफिट। एक, अगर यही बंदे ने 500 रुपए में असेट बेची होती, सेम असेट 500 रुपए में बेची होती का मतलब है अगर यही पर्सन ने ये असेट में, समझने का प्रयत्न करना विराग भाई, मैं थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूं, काइंडली पार्डन मी, 500 रुपए का ही दस्तावेज किया होता तो उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता 137।
टैक्स आता 20% से। अभी आज अगर 500 का ही दस्तावेज करे तो उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बने 400 रुपए और उनका टैक्स आए खाली 50 रुपए। 500 का दस्तावेज करो ना तो कल का प्रोविजन बेनिफिशियल है ओल्ड, आप 1000 का दस्तावेज करो ना तो कौन सा प्रोविजन बेनिफिशियल है आज वाला नया वाला। गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है? देयर शुड नॉट बी ब्लैक मनी इन द प्रॉपर्टी मार्केट। समझने का प्रयत्न करिए, हमें क्या लगेगा कि ये गया अच्छा, पर इसको अगर मैं नेगेटिवली एनालाइज करूं, जैसा मैंने आगे कहा, छाजेड साहब ने भी कहा, इज वेरी राइट के मिलना ही चाहिए इंडेक्सेस। अगर ये प्रोविजन को मैं नेगेटिवली एनालाइज करूं कि मेरे क्लाइंट ने घर बेचा है, रेसिडेंशियल हाउस बेचा है एंड वो रेसिडेंस लेना चाहता है, सेक्शन 54 में एग्जम्पशन करना चाहता है, या वो 54 इसी वाले बॉन्ड्स लेना चाहता है, तो साहब पहले उनको हमारा पुराना इलस्ट्रेशन जो था 1000 रुपए वाला, उसमें 637 का इन्वेस्टमेंट करना था, अभी उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़े 900 का। पुराने में 500 वाला ले तो 137 का इन्वेस्टमेंट करना था, अभी इन्वेस्ट करना पड़े 400 रुपए का। इसका क्या करोगे साहब? देखिए, समझने का प्रयत्न करिए। गवर्नमेंट ने दो गाल पे चाटा लगा दिया। मैं ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी में बनाया है बिकॉज इट इज ओनली 3.5 hours एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय टीम हु हैज मेड। मैं तो घूम रहा था, यहाँ पे जा रहा था, वहां पे डिबेट कर रहा था, पर दिस इज प्रिपेयर्ड बाय माय टीम ओनली, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ माय ऑफिस जिन्होंने बनाया है। पर ये एक ही इलस्ट्रेशन से अगर हम एनालाइज करने का प्रयत्न करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल भी ज्यादा रुपए का बताओ, परचेज भी ज्यादा रुपए का बताओ। And that is why no black money or less black money in the property market is the intention of the legislature according to my reading. It's a preliminary reading. I may not be thoroughly correct, but जहां तक मुझे लग रहा है वहां तक गवर्नमेंट का आइडिया यही है। बहुत बड़ा बदलाव इन द केस ऑफ बायबैक ऑफ सेल्स। क्या चेंज लाए? अच्छा, दूसरा, मैं यहां पे 1 मिनट पॉज लेके कहूं तो क्या ये सोचा समझा हुआ स्टेप था गवर्नमेंट का? इन माय हम्बल ओपिनियन नो। क्यों नो? अगर सोचा समझा हुआ स्टेप होता तो गवर्नमेंट 363 का इंडेक्स नंबर ही अभी नहीं निकालता। गवर्नमेंट ने अभी 363 का इंडेक्स नंबर दिया। इसके सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि 22 जुलाई या 22 जुलाई के बाद की बात है, तो दैट इज ओके, बट फॉर द ईयर 24-25 आप समझने का प्रयत्न करिए यूटिलिटी कैसे बनेगी। अगर यूटिलिटी एक 87A नहीं ले रही है 111A के ऊपर 5 जुलाई के बाद, तो ये कहां से लेगा? राइट, वन। दूसरा, अगर हम बायबैक की बात करें तो 2013 में दिस प्रोविजन वाज बीन इंसर्टेड बाय मिस्टर पी चिदम्बरम जी, कांग्रेस गवर्नमेंट, in their last full-fledged budget, wherein the honorable finance minister said that for unlisted shares 115 QA में 20% से टैक्स लगेगा। ऑन द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना, बायबैक प्राइस एंड इश्यू प्राइस, शांति से कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयत्न करना, बायबैक प्राइस एंड इश्यू प्राइस के डिफरेंस के ऊपर कितने ऊपर टैक्स लगेगा? 20% से, प्लस ऑलवेज सरचार्ज प्लस सेस। एक मुद्दा। नाउ दे से दैट इंपॉर्टेंट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। मुझे जो नया प्रोविजन 13 में लाए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी, अनलिस्टेड के ऊपर, लिस्टेड के ऊपर तो नॉर्मली ये करता था। 5 जुलाई 2019 का बजट, निर्मला सीतारामन जी का पहला बजट, नमो 2 का फर्स्ट बजट, जिसमें मैडम जी फर्स्ट बजट प्रेजेंट करते हुए बोला, those buybacks which are announced on or after 5th July 2019 for the listed shares, same rule will be applicable 115 QA and shareholder के हाथ में under 1034A आपका कैपिटल गेन टैक्स या आपकी इनकम एग्जॉम्प्ट हो जाएगी। नाउ मैडम जी ने ही बोला था कि लिस्टेड के ऊपर भी मैं बायबैक पे टैक्स ला रही हूं,
अभी मैडम जी बोल रहे हैं कि 115 QA इज एबोलिस्ड। 115 QA इज एबोलिस्ड के साथ साथ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैम बोल रहे हैं कि जो 115 QA एबोलिश किया, अभी ये टैक्स कहां पे होगा? तो हम लोगों ने तो सिंपल सोच दिया, मेरी ऑफिस से तो लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम गए थे, आपकी ऑफिस से भी गए होंगे, TCS क्या बायबैक हुआ था, काफी क्लाइंट ने TCS बायबैक में दिए थे और 1034A में एग्जाम बताना था, हम कैपिटल गेन में इसका टैक्स भर देते थे, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भर देते थे नॉर्मल रेट से। अभी मैडम जी ने कहा कि बायबैक इज 115 QA is not applicable. Buyback would be taxed in the hands of recipient. तो buyback is tax in the hands of recipient means कल लास्ट ईयर जो मेरी ऑफिस में गलत हो रहा था, आपकी ऑफिस में गलत हो रहा था, वो अभी करना है। मैडम जी ने एक्सेप्ट किया कि बच्चे मिस्टेक करते थे, पलक भाई मिस्टेक करते थे, तो अभी जो आप करते हो ना पलक भाई वही सही, जैसे उनकी सिस्टम जो कर रही है 87 में वो सही, वैसे ना प्रोविजन कुछ अलग। प्रोविजन ला के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम बोल रहे हैं कि 222F करके नया सेक्शन इंसर्ट किया है, डीम्ड डिविडेंड, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑन द बायबैक इज टैक्स अंडर 222F which would be shown under the head income from other source. डिविडेंड से आप लोगों को पता है कि कोई और खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड। मैडम जी ने 57 में अमेंडमेंट लाके बोला कि 222F से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, मीनिंग देयर बाय कंपनी जितना बायबैक पे देना उतने के ऊपर टैक्स पड़ेगा। अब यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, टोटल अमाउंट पे टैक्स पड़ेगा, यस, कॉस्ट का भी डिडक्शन नहीं ना, कंपनी को इश्यू प्राइस का डिडक्शन देते थे वो भी नहीं ना, कुछ भी नहीं, टोटल के ऊपर यू हैव टू पे द टैक्स। कितने रेट से यू हैव टू पे द टैक्स? फ्रेंड्स, दे से यू हैव टू पे द टैक्स एट योर नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट में भी है नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगाया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो सभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका टैक्स कर दिया है, सॉरी माय मिस्टेक, फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर कर दिया है 20%, बाकी के ऊपर रखा है नॉर्मल एंड लॉन्ग टर्म सभी के ऊपर कर दिया है 12.5%। यहां पे कैपिटल गेन में जाना ही नहीं है, दिस वुड बी शेड्यूल ओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैं शेड्यूल में इसलिए बात कर रहा हूं, रिटर्न फाइलिंग की सीजन चल रही है, सो इट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 222F, कोई खर्चों का डिडक्शन नहीं। अब ये इलस्ट्रेशन मैंने मेमोरेंडम से ही उठाया हुआ है, मेरी टीम ने वहां से ही लिया। लेट मी पुट इट दिस वे, तो इसकी कॉस्ट का डिडक्शन कहां पे मिलेगा? सेक्शन 46A में बदलाव लेके आए, जिसमें क्या कहा इन लोगों ने, समझिए। मैंने अगर 100 शेयर्स 2020 में 40 रुपए में कंपनी से लिए, 4000 रुपए की मेरी कॉस्ट बनी। अगर इसमें से 20 शेयर्स कंपनी ने 2024 में बायबैक कर लिए 60 रुपए में, तो 60 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 20 करके 1200 रुपए विल बी टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F एट व्हाट रेट? एट नॉर्मल रेट एप्लीकेबल टू माय असेट्स साहब। एंड 40 रुपए की कॉस्ट जो ये 20 शेयर्स के ऊपर थी ना, 800, उसका मुझे कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। अगर बाकी के शेयर्स में बेच रहा हूं 80 शेयर्स, मान लो एट एनी अमाउंट, या मेरे इलस्ट्रेशन में मान लीजिए 50 शेयर्स मैंने बेचे हैं 70 रुपए में, तो मुझे 50 शेयर्स 70 रुपए 3500 रुपए, 50 शेयर्स उसकी कॉस्ट 40 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, माय मिस्टेक, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। एंड उसके ऊपर मुझे वो जो लॉस था 800 रुपए का, उसका क्या मिल जाएगा? सेट ऑफ, एंड दैट्स हाउ माइन विल बी 700। अब इसको दो तरीके से एनालाइज करने का हम अच्छे से प्रयत्न करें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। अगर इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करने का हम प्रयत्न करें तो कुछ पोजीशन ऐसे जाएगी। मान लो मेरा क्लाइंट 30% के स्लैब में फॉल हो रहा है, तो बेचारे ने 1200 रुपए के ऊपर 30% टैक्स भर दिया, बराबर।
उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो अभी सभी के ऊपर 12.5% ही टैक्स होने वाला है, तो उनको ये जो कॉस्ट का सेट ऑफ मिल रहा है ना, वो 30% है, नहीं मिल रहा है, 12.5% से मिल रहा है। एक एक वे आउट देखो गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्ट करने के। अनाउंसमेंट आते हैं तब हम क्या देखते हैं, बट द वे शी इज कलेक्टिंग द टैक्स इज फैबुलस। सर आपको पता भी ना चले कहां से ले गए। मैं फिर से बोलूं, अगर आपको एक कॉस्ट का डिडक्शन 222F में से ही दे देते तो कहना ही से ये कॉस्ट का डिडक्शन आपको 800 रुपए का 30% रेट से मिलता, बट आपको क्या बोला, नो इट वुड बी कैरीड फॉरवर्ड एज अ लॉस एंड यू कैन सेट इट ऑफ। नाउ व्हेन यू सेट ऑफ यू आर एबल टू सेट ऑफ फ्रॉम 12.5% टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट है। So there is going to be a big disadvantage. 800 के ऊपर 30 and 12.5 का डिफरेंस is your disadvantage in our illustration। एक महत्वपूर्ण मुद्दा। दूसरा, ये मैंने गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से बोला। अच्छा अगर आपको लगा ना हो तो मैं कुछ ये भी बोल सकता हूं, दोनों साइड से हो सकता है, एवरी कॉइन हैज गॉट टू साइड्स, जो ऑल ऑफ अस आर अवेयर। बायबैक का प्रोविजन अब तक कुछ ऐसा कह रहा था कि कंपनी ने मान लीजिए कि 40 रुपए में शेयर्स इश्यू किए, मुझे इश्यू किए, मैंने नीलेश कुशवाहा साहब को बेचे 60 में, मैंने 60 और 40 के डिफरेंस के ऊपर टैक्स भरा। नीलेश कुशवाहा साहब ने अग्रवाल साहब को बेचे 100 रुपए में, अग्रवाल साहब ने अश्विन जी को बेचे, अश्विन सर ने ये ब्रुदांग सर को बेचे, ब्रुदांग सर ने ये मान लीजिए विराग भाई को बेचे, और विराग भाई के हाथ से कंपनी ने बायबैक कर दिया। तो हमने अंदर 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 तो टैक्स भरा ही है। कंपनी ने 40 रुपए में इश्यू किए थे और कंपनी ने 300 में विराग भाई से बायबैक किए। विराग भाई ने लास्ट 290 से बाय किए थे, तो 40 से 290 तक तो टैक्स लगा ही था, हम सब ने कैपिटल गेन टैक्स भरा ही था अब तक। अभी विराग भाई के शेयर्स का 300 रुपए में बायबैक हो गया, तो कंपनी को अब तक टैक्स जो भरना पड़ता था वो भरना पड़ता था ऑन द डिफरेंस बिटवीन 300 एंड इश्यू प्राइस, बायबैक प्राइस एंड इश्यू प्राइस, दैट इज 300 एंड 40 के डिफरेंस, 260 के, सॉरी 260 के ऊपर 20%। अभी विराग भाई को जो टैक्स भरना पड़ेगा वो 300 रुपए के ऊपर भरना पड़ेगा। आप बोलोगे कि कंपनी चली गई, विराग भाई इज टैक्सेबल, यस। कितने के ऊपर? 300। कौन से सेक्शन में? 222 है। कौन से रेट से? उनके अप्लीकेबल रेट से। अब समझिए, ये होने के बाद विराग भाई को कॉस्ट कितनी डिडक्टिबल मिलेगी? 290, जो कंपनी को 40 से मिलती थी। विराग भाई को कितनी कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा? उनकी खुद की कॉस्ट का। ये जो हमारे यहाँ 40 रुपए वाला इलस्ट्रेशन है ना, उसमें तो मैंने अज्यूम किया है कि कंपनी ने जिसको शेयर्स इश्यू किए उन्होंने ही उनके हाथ से ही बायबैक हुआ। बट अगर पूरी चेन चल रही है तो अर्लियर 115 QA में इश्यू प्राइस ही डिडक्टिबल मिलती थी, while in now our case Virag bhai would be able to get his own cost as a capital loss, that is 290 rupee in our illustration. So it's also going to be a benefit according to me, but मैंने जैसे रेट वाला समझाया, that is a problem. STT का रेट बहुत बड़ा बदलाव। क्यों ये बदलाव ला रहे हैं? सर आई विल बी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, ये जो फ्यूचर ऑप्शन का आई वुड से एक लत जो हमारी यंग जनरेशन को लगी है, आई विल बी ऑनेस्ट, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र जो बहुत एफओ करता है, बंद करवाया अभी तो हमने उनको, बट ही इज डूइंग एफओ लाइक एनीथिंग। तो मुझे अगर आप कहो ना तो आई विल बी ऑनेस्ट, ही इज अर्निंग एनीथिंग, वो लॉस में ही जा रहा है। अब यार ये बंद करवाना है, ये नहीं अच्छी बात है। एंड टू स्टॉप दिस इविल, वन, they increase the rate of future and option STT to 0.1% and future to be 0.02%. दूसरा महत्व का मुद्दा, ये सब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले हैं 15 का 20 कर दिया, जो हमने देखा 119 में। लॉन्ग टर्म वाले के लिए 10 का 15 कर, 10 का 12.5 कर दिया, जो भी हमने देखा, पर लॉन्ग टर्म तो सब में 12.5 का रेट गया हुआ है। अच्छा, बिफोर आई क्लोज दिस कैपिटल गेन, वो एक मैं लंप सेल की बात कर रहा,
स्लम सेल का मतलब है आप पूरी एंटिटी बेच दो एट लॉक स्टॉक एंड बेयरर विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यूज टू असेट लायबिलिटी। अब स्लम सेल में प्रोविजन में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो अमेंडमेंट, बट ये स्लम सेल के प्रोविजन को समझे। मेरा यूनिट 2006 में मैंने लिया हुआ, यूनिट की मेरी नेटवर्थ थी 100 रुपए, और आज मैं पूरा यूनिट बेच रहा हूं नेट कंसिडरेशन 300 रुपए से। स्लम सेल में वैसे भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता था, अगर स्लम सेल में वैसे भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता था तो 200 रुपए के ऊपर पहले 20% टैक्स लगता था, अभी 200 रुपए के ऊपर खाली 12.5% टैक्स लगेगा। सो यहाँ पे बेनिफिट है। हमारे गुजरात में अभी काफी चल रहा है। गुजरात में कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो कंपनीज है, आई वुड से जो पैथोलॉजी लैब्स, उसके लिए कुछ कायदा आया है कि इट हैज टू बी LLP या कंपनी। तो मेनी पीपल आर गेटिंग देयर एंटिटी कन्वर्टेड इनटू कंपनी, पूरा स्लम सेल कर रहे हैं, और दे आर ट्राइंग कि उनका टैक्स बचे। सो अगर कर रहे हैं अभी तो इट इज गोइंग टू बी अ टैक्स बेनिफिशियल थिंग। 12.5% वुड बी द टैक्स रेट इन द केस ऑफ स्लम सेल। एंड दूसरा 36 महीने का पीरियड भी कितना हो गया, 24 महीने का, बिकॉज गोल्ड सिल्वर सभी के लिए इट इज 24 महीने। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे एक मेरा मित्र अभी फोन पे बता रहा था, एंड ही इज राइट। गोल्ड मैं बेच दूं, अब मेरा अगर गोल्ड का 1 अप्रैल 2001 का मैं रेट देखूं, चलो एक इलस्ट्रेटिव मोड में जाए, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कैपिटल गेन में बदलाव है। तो गोल्ड प्राइस 1 अप्रैल 2001 का, आई हैव गॉट, एक सेकंड मुझे देना सो दैट आई कैन गेट इट फॉर यू। गोल्ड प्राइस मुझे जहां तक मिल रहा है वहां तक है 4300 रुपी पर 10 ग्राम। सो 4300 को मैं इंडेक्स करता तो आता 15,600 रुपए। 15,600 रुपए, 15,600 रुपए 363 से इंडेक्स करता तो आता 15,600 रुपए। आज का गोल्ड का प्राइस है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 65,000, 70,000। सर अपने पास है नहीं, गोल्ड नहीं है, शेयर्स नहीं है, तो पता नहीं है। आज का प्राइस है 72,000। आई हैव माय टीम व्हिच इज देयर विथ मी, 72,200, हम 72,000 ले, और वो आ रहा था 15,600, तो मेरा टैक्स पेबल उसके ऊपर बन रहा था 20% करके 11,280। अभी अगर मैं 72,200 में गोल्ड बेचूं 4,300 का, और मेरा टैक्स पेबल 12.5% ही आया ना, तो मेरा टैक्स पे अब मेरा कॉस्ट डिडक्टिबल 4,300 ही आया ना, तो मेरा टैक्स पेबल आ रहा है 8,487। Apparently, I would say it would be an advantage 12.5% वाला। देखिए, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया, बट इट डिपेंड्स आपकी कॉस्ट एंड सेल्स प्राइस का डिफरेंस क्या है, उसके बेस पे इट मे बी बेनिफिशियल, इट मे नॉट बी बेनिफिशियल, एंड this is how again government will try to get the white money in the market. See, this is under operation clean money, and this is what is our government doing, I would say. Sir, at the same time, thought of my presentation is changes in the procedure. जैसे पीयूष छाजेड सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अभी लाए हैं स्कीम आप 148A, सर्च को 148 में मर्ज कर दिया, सर्च को निकाल दिया, और अभी आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे 148A में बदलाव करना है। यार आप कंसिस्टेंट पॉलिसी तो रखिए। बट इफ यू एनालाइज रीअसेसमेंट प्रोसीजर, रीअसेसमेंट प्रोसीजर में कुछ ऐसे रूल थे अब तक, अप टू 3 years ऑफ द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, कितनी भी इनकम की एस्केप हो, कितनी भी इनकम एस्केप हुई हो, आपका केस रीअसेसमेंट में ले सकते हैं। 3 साल के बाद अगर लेना हो तो 10 साल तक वो ले सकते हैं, इफ योर एस्केप्ड इनकम इज अप टू
rupees, what amount up to rupees, minimum rupees 50 lakhs. ये 10 साल तक के assessment, it is very painful, and that's the reason this time limit has been reduced from 10 years to 5 years. That is big change in the case of reassessment. दूसरा महत्व का मुद्दा जो रीअसेसमेंट में था वो ऐसा था कि सर्च असेसमेंट को भी रीअसेसमेंट में मर्ज कर दिया, एंड सर्च असेसमेंट वाज मर्ज्ड इनटू द रीअसेसमेंट। पोजीशन हमारी ऐसी होती थी कि सर्च के केसेस में भी आपको 10 साल तक की नोटिस आती थी अंडर 148A, जिसमें देयर वर सर्टेन कंडीशंस व्हिच वर नॉट टू बी फुलफिल्ड। 148A बी एंड डी का कंप्लायंस की कोई जरूरत नहीं थी, एंड दैट वाज गोइंग ऑन नाइसली। पर 10 साल का असेसमेंट एक एक करके ये गवर्नमेंट नोटिस इश्यू करे, डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू करे, हम सबका जवाब दे। नॉट ओनली दैट सर, आई विल पुट इट दिस वे कि ओवर एंड अबाउट दैट हमारे साथ प्रॉब्लम ऐसा होता था कि 10 साल की डिफरेंट अपील एंड 10 साल के अलग अलग लिटिगेशन। सर अलग अलग लिटिगेशन में अलग अलग ऑर्डर भी आ सकते हैं, एज नाउ द थिंग्स आर गोइंग, यू पीपल आर अवेयर विद डिफरेंट ऑफिसर्स। सो ये सब बहुत ही इश्यूज थे। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, काइंडली लिसन। अभी इन लोगों ने कहा कि नाउ द सर्च विल बी only and only having not 148A but old provision of the block assessment for a block period of 6 years will be coming into play. An existing time limit of 10 years under 148A is abolished. 148A की जगह सेक्शन आ गया 158 ब्लॉक असेसमेंट, जो पुराना था, जो पुराने सर्च केसेस में होता था। your block period will be 6 years prior to the financial year of the search plus the broken period of the financial year in which search is conducted. Along with this, क्या दूसरे changes आए? Along with this block assessment would be applicable only when the search is conducted on or after 1st September 2024 for a block period of 6 years, as I have said. और ये ब्लॉक असेसमेंट में जो भी आपका असेसमेंट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है 60%। सरचार्ज एंड सेस एक्स्ट्रा एप्लीकेबल। सरचार्ज का रेट अभी डिफाइन किया हुआ नहीं है, हालांकि जहां तक मैं समझ रहा हूं वहां तक सरचार्ज का रेट 25% ऑफ 60 ही आएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी सेम रेट ऑफ टैक्स व्हिच वुड बी एप्लीकेबल, व्हिच इज एप्लीकेबल अंडर 115 BBE of the Income Tax Act. Penalty leviable will be 50% of the tax payable. This is too heavy. Unlike 171 AAB, penalty will be 50%. Now the important issue is, एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया, ये हमारी मेहनत कम करवाओ। गवर्नमेंट का ऐसा क्या मेहनत कम करवाओ, तो क्या आप कन्फेशन कर लो ना सर्च के वक्त। अगर आपने कन्फेस कर लिया ना तो पेनल्टी नहीं लगाएंगे। आप 78% में, मैं अज्यूम कर रहा हूं 15% सरचार्ज, तो आप 70% में गंगाना। और अगर आपने कन्फेस सर्च के दौरान नहीं किया तो भी मैं दूसरा मौका देता हूं, आप कन्फेशन कर लो। कब कन्फेशन कर लो? सर्च का रिटर्न करो, तो भी आप गंगा ना आए, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। और अगर हमने ढूंढ निकाला, हमने मीन गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो पेनल्टी विल बी 50% ऑफ द टैक्स पेबल। So that would be too heavy. अब साहब ये भी वही हुआ, पहले यही था साहब, डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, मनी बिल आया था 2016 में, आई थिंक 29 ऑफ नवंबर को प्रपोज हुआ था, 17 दिसंबर 2016 को ये पास हुआ था आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। यही हुआ था, यही था प्रोविजन प्रायर टू द सेम वाज, सर्च में कन्फेस करो नो टैक्स, सर्च के रिटर्न में कन्फेस करो नो टैक्स, उसके बाद अगर ढूंढा सॉरी नो पेनल्टी, उसके बाद अगर ढूंढा तो निकला तो पेनल्टी। फिर चेंज करके बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, सर्च में कन्फेशन करो तो ही नो पेनल्टी, एल्स पेनल्टी, सर्च के रिटर्न में भी पेनल्टी। फिर से बोल रहे हैं सर्च के रिटर्न में कन्फेशन करो तो देयर इज नो पेनल्टी। सो अगेन दे आर ब्रिंगिंग बैक ऑल द ओल्ड प्रोविजन। और ऐसा नहीं है कि आगे की गवर्नमेंट ने बदला था, हम 2016 जेटली साहब नहीं बदला था, मनी बिल में ही बदला हुआ। ये दूसरा
search assessment has to be completed, block assessment has to be completed within 12 months of the end of the month in which last authorization of search is initiated, so that there should be quick assessment, there should be quick recovery. पॉजिटिव्स क्या हो गए? पॉजिटिव्स ये हो गए कि अब तक ना मुझे पता चलता था, ना डिपार्टमेंट को पता चलता था कि मेरे यहाँ गोल्ड के बिस्किट मिले हैं, तो वो कौन से ईयर के, और वो भी घूमते रहते थे, हम भी घूमते रहते थे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि किसी भी ईयर में ले जाओ टैक्स पेबल तो 78% ही है। मुझे पता है इमीडिएटली कोई लिखेगा चैट बॉक्स में कि क्या फर्क नहीं पड़ता था, इंटरेस्ट के लिए तो फर्क पड़ता था ना साहब। 100% पड़ता है। अभी बोला ब्लॉक असेसमेंट, सो ब्लॉक असेसमेंट में ये अब ब्लॉक पीरियड में ले जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा महत्व का मुद्दा, आपका जो असेसमेंट सर्च का होगा, दैट वुड बी डन बाय द सर्च बोर्ड। ऑल ऑफ अस आर अवेयर एट प्रेजेंट सर्च असेसमेंट एज वेल एज एट प्रेजेंट द नॉन रेसिडेंट असेसमेंट्स आर फिजिकली डन बाय द डिपार्टमेंट। मैडम जी ने बोला हुआ है कि सूनर और लेटर दिस वुड आल्सो बी फेसलेस ई असेसमेंट, बट as far as I know there is no announcement made till now, so it is going to be the physical assessment till now. अच्छा, दूसरे छोटे छोटे बदलाव अगर हम प्रोसीजरल पार्ट के देखें तो वन इज आपका जो ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने का टाइम लिमिट था, वो ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने का टाइम लिमिट अब तक था 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील और ऑर्डर अपील अगेंस्ट। अभी उन लोगों ने ये चेंज करके बोला इट इज 2 months ऑफ द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड। सो थोड़ा ज्यादा टाइम हमें मिल जाएगा। वैसे भी हम डिले कॉन्डोन करवाने बहुत जाते हैं, एक्चुअली ये डिपार्टमेंट के लिए लाए हैं ऐसा वो बता रहे हैं, बट द सेम बेनिफिट I've checked out available to the assessors. तीसरा महत्व का चेंज इन द असेसमेंट प्रोसीजर, सीआईटी अपील बहुत सारी पोस्टिंग कर देंगे ऐसा मैडम ने बोला, एंड फॉर handling the big cases wherein the huge tax demands are there, they would be working quickly, they would be passing the order quickly, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट में उनकी बजट स्पीच में मैडम जी ने कहा है। बट जो लिखा है वो समझे, ये इसके रिलेटेड नहीं, अदरवाइज है, समझने का प्रयत्न करें। 144 बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर हो गया। मेरा क्लाइंट आया मेरे पास, फार्मर है, लाइफ में कभी रिटर्न भरा नहीं था, करंट ईयर में फार्मर ने अपनी अर्बन एरिया की एग्रीकल्चर लैंड बेच दी, सब रजिस्ट्रार से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में गई, डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दी, नोटिस पोर्टल यूज करना तो आता नहीं, क्योंकि पोर्टल मान लो कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, 500 पहले कभी टैक्स रिटर्न भरा होगा तो किसी उनका सन डॉटर हो गए, उनके किसी मित्र के पास रिटर्न भरवा दिया होगा, राइट। तो अभी तो वो देखता नहीं है, कभी रिटर्न भी नहीं भरा। इस बार में ये प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन हुआ, उसके माइंड में तो ऐसा ही है कि कोई टैक्स आने वाला नहीं है, ये तो मैंने खेती की जमीन बेची है, खेती की आवक एग्जम्प्ट है, हमारी एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट। उनको नोटिस आई, उनको पता ही नहीं है नोटिस आई, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। दूसरी बार नोटिस, तीसरी बार नोटिस, चौथी बार नोटिस, मेल में भी मान लो जा रही है वो पुराना कंसल्टेंट बोले मैं इसको पहचानता ही नहीं हूँ, मेरी फी आ गई, मेरा बात खत्म, कोई जवाब ही नहीं है। उनका 144 हो गया, बेस जजमेंट हो गया, ऑर्डर आया वो भी पता नहीं है। पता कब चला? जब घर पे फिजिकली डिमांड की नोटिस आई, रिकवरी की नोटिस आई, या बैंक अकाउंट अटैच। अब तब जाके बंदा आया आपके यहां और बोला कि अपील फाइल करनी है, आप बोलोगे 30 दिन में अपील फाइल करनी है, अभी नहीं हो सके, बोले कि नहीं सर कर ही दो, डिले कॉन्डोन। हम नहीं एडवाइस देते कि डिले कॉन्डोन करवाने का प्रयत्न करते हैं, और हम यही लिखते हैं कि असेसी इज इलिटरेट एंड ही इज नॉट अवेयर, टैक्स कंसल्टेंट वाज नॉट को। हमारे यहाँ तो एक जने ने ऐसा टैक्स कंसल्टेंट का भी एफिडेविट डाल दिया है कि हाँ मुझे पता नहीं था, दिस दैट वगैरह। सो उसके बेस पे हम डिले कॉन्डोन करवाने का पार्ट अब ट्राई करते थे। सीआईटी अपील मान लो डिले कॉन्डोन करके हियरिंग भी रखे
तो जो डॉक्यूमेंट हमने सीआईटी अपील को दिए उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट हमने वो लेवल पे तो दिया नहीं है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट दिया नहीं है तो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज रूल 46 से all the evidences are additional evidence. If all the evidences are additional evidence, CIT appeal has to give it back to the AO for giving a remand report. AO remand report देता था, AO remand report दे, उसके बाद CIT appeal may consider this remand report, may not consider this remand report, and CIT appeal has to pass the order. CIT appeal was not having any power to revert the case back to the AO. अभी जाके बोल दिया कि अगर आपने कोई सबमिशन नहीं किया है और आपका 144 में ऑर्डर हुआ है तो दो जने क्यों मेहनत करे। सीआईटी अपील आप जो आपको एडिशनल एविडेंस मिल रहा है ना वो लेके एओ को दे दो और बोलो तू असेसमेंट कर, तू ही ऑर्डर। यू कैन रिवर्ट द केस बैक टू द लर्नेड एओ फॉर मेकिंग असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडिशनल एविडेंस। सो ऐसा नहीं कि वो रिमांड रिपोर्ट दे सीआईटी अपील, वो रिमांड रिपोर्ट देके उसके बेस पे सीआईटी अपील ऑर्डर पास करे। नो, सीआईटी अपील इट इज अप टू द डिस्क्रेशन ऑफ सीआईटी अपील टू रिवर्ट इट बैक टू द लर्नेड AO and yes he can revert back. So ये एक बहुत बड़ा मतलब। Another important change, हमारे गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट था रोहिणी ट्रेडिंग कंपनी। मैंने 5-7 साल पहले 3-4 केस में कोर्ट किया था, उस टाइम सीआईटी अपील फिजिकल था। तो मुझे एक सीआईटी अपील ने बहुत अच्छा बोला था कि आप कुछ नई बात करो, कौन से हमारे जमाने की बात क्यों करते हो आपके, ये बहुत पुराना हो गया। हालांकि उस टाइम सेक्शन 68 में अमेंडमेंट नहीं था। रोहिणी ट्रेडिंग ऐसा बोल रहा है कि मैंने अगर मान लीजिए कि विराग भाई से लोन ली हुई है और मैं प्रूव कर दूं कि मैंने विराग भाई से लोन ली हुई है तो मुझे वो लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि विराग भाई का सोर्स प्रूव। ऐसा रोहिणी ट्रेडिंग सेक्शन 68 इज अमेंडेड wherein they say कि for पलक पावागढ़ी विराग भाई की लोन would be considered as unexplained। अगर पलक भाई विराग भाई से लोन ली ऐसा प्रूव नहीं कर सकते या पलक भाई ऐसा नहीं प्रूव कर सकते कि विराग भाई का सोर्स क्या है, सोर्स का सोर्स भी वो लोग पूछ सकते हैं। ऐसा एक चेंज है। नाउ 68 में जो बदलाव था उसका एक प्रोवाइजो था। ये प्रोवाइजो हम लोगों को नहीं पता था। प्रोवाइजो कुछ ऐसा था कि अगर मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट से या वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड से लोन ली हुई है विच इज रजिस्टर्ड विद सेबी, तो मुझे ये पूछ सकते हैं कि तुमने कहां से लोन ली पलक भाई, पर वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी का सोर्स मेरे पास से नहीं मांग सकते। ऐसा प्रोविजन पहले से था। सेक्शन 68 में जो ये चेंज आया, सोर्स का सोर्स मांगो, सोर्स का सोर्स किसका नहीं मांग सकते, वीसीसी वीसीएफ रजिस्टर्ड विद सेबी। आज क्या चेंज लाए, आज चेंज लाए वीसीसी वीसीएफ रजिस्टर्ड विद सेबी और रजिस्टर्ड विद आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में रजिस्टर्ड हो तो उसका भी सोर्स नहीं मांग सकते। बाकी मैंने विराग भाई से ली हुई है तो विराग भाई का सोर्स वो लोग डेफिनेटली मेरे से मांग सकते हैं, आज भी मांग सकते हैं, कल भी मांग सकते थे एंड मुझे एडिशन कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा चेंज। दूसरा आई वुड से और अदर मेरा नेक्स्ट पार्ट आफ्टर असेसमेंट इज अ टैक्स पेमेंट एंड द रेट्स ऑफ टैक्स। टीडीएस के रेट्स को काफी रेशनलाइज कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम 5% का 2%, मेरे बाजू में डेट दी हुई है, मैंने मेमोरेंडम से उठाया हुआ है। 194 डीए 5 का 2%, 5 का 2% कमीशन ऑन लॉटरी टिकट, ऑल फ्रेंड्स रेट्स आर बीइंग चेंज्ड। सो देयर इज अ बिग चेंज। 1 or 2 slides are missing which I will be adding। 194M का जो टैक्स रेट है वो भी चेंज करके इन लोगों ने किया हुआ है 2%, जो 194M पहले 5% था। And sir, another very important point which they have highlighted is कि अगर आपका 194O में टीडीएस हो रहा है, 194O का मतलब है कि मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कर रहे हो, आपने ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन सेल कर रहे हो वगैरह के ऊपर, तो अब तक टीडीएस जो होता था वो 194O नंबर के सेक्शन में होता था। एंड ये 194O में
जो टीडीएस का रेट था वो 1% था, वो चेंज होके हो गया 0.1%। सो ये भी बहुत बड़ा चेंज। पर जो इन फैक्ट हमें ज्यादा अप्लाई करेगा ये सबसे भी, वो है 194 IA में क्लैरिफिकेशन। क्या कह रहा है 194 IA? 194 IA कह रहा है कि अगर मैं प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर जाए तो आई एम सपोज टू मेक अ टीडीएस एट द रेट ऑफ 1%। कितने के ऊपर कितना टीडीएस करने का? 1% से अंडर 194 आई है, रेट में कोई बदलाव नहीं। अब पलक ने मान लीजिए कि प्रॉपर्टी बाय की मिस्टर एक्स से 60 लाख रुपए में 1%, बट पलक प्रॉपर्टी बाय करता था मिस्टर एक्स एंड मिसिस एक्स से, जो इक्वल ओनर है। मैं पलक देता था 30 लाख मिस्टर एक्स को, देता था 30 लाख मिसिस एक्स को, तो टीडीएस करना पड़े या ना करना पड़े? हालांकि मैं पहले से ऐसा बोलता था कि यार कर लो, टीडीएस करना पड़े, मेरे हिसाब से करना पड़े। But there are tribunal judgment, there are court judgment which says that this limit is always applicable 1-to-1। मैं बहुत क्लियर था पहले से कि 194 आई के रेंट में दिस लिमिट इज एप्लीकेबल 1-to-1। 194 आई में कंसीडरेशन वर्ड है, कंसीडरेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट पर ओनर। सर जो 30 लाख एक मिस्टर एक्स मिसिस एक्स से है, उसके ऊपर टीडीएस करना पड़े या ना करना पड़े, जो कंट्रोवर्सी थी, इसको दैट कंट्रोवर्सी इज सेट टू रेस्ट बाय ऑनरेबल द फाइनेंस मिनिस्टर बाय सेइंग दैट एग्रीगेट लिमिट इज टू बी सीन। सो नाउ इवन इफ इट इज मिस्टर एक्स मिसिस एक्स 30 लाख एग्रीगेट 60 लाख, टीडीएस अंडर 194 IA विल बी एप्लीकेबल। सो दिस इज अ बिग चेंज, बिग बदलाव। पार्टनरशिप का रेगुलेशन, क्या हालत इन लोगों ने की है। माय सीनियर्स एंड फ्रेंड्स, कल मैं हमारे एक क्लाइंट का मित्र है, फैमिली फ्रेंड है, लॉयर से, उनका प्लानिंग कर रहा था। थर्ड जनरेशन इज कमिंग इनटू द बिजनेस। अब तक वो लोग हर एक की प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहा है, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद द क्लाइंट एज उनके रिटर्न जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर एक सब कुछ अंडर वन रूफ ला दे और एक पार्टनरशिप फॉर्म कर दे तो कैसा। तो मैंने उनको कैलकुलेशन करके बताया कि रेम्यूनरेशन जो आपको मिलता है ना, वो आपको टैक्स होगा। 40B में जो रेम्यूनरेशन फॉर्म को अलाउ होगा या 40B की लिमिट के हिसाब से जो अलाउ होगा, वो सामने पार्टनर को टैक्स हो जाएगा। बैलेंस इनकम फॉर्म को 30% से टैक्स होगी। तो मेरा जो कैलकुलेशन अपरेंटली बना, एक्सेल वेक्सेल नहीं बनाया था मैंने, पर अपरेंटली जो मेरा कैलकुलेशन बना ना, वो कैलकुलेशन ऐसा बना जिसमें मुझे कन्वर्जन करना बेनिफिशियल नहीं हो रहा था। तो इन दैट केस मैंने उनको एडवाइस दी कि यार रहने दीजिए, अभी हम ऐसा करते हैं कि हम जो है वही रखते हैं, बट स्टिल वी विल हैव वन मीट आफ्टर द रिटर्न फाइलिंग सीजन। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने ये रेम्यूनरेशन की लिमिट बढ़ाई, वेरी राइटली चेंज, बिकॉज उन्होंने ऐसा कहा कि 2010-11 में ये लिमिट लास्ट टाइम चेंज हुई थी। कहा मींस मेमोरेंडम में लिखा है। पहले ऐसा पोजीशन था कि 3 लाख रुपए तक का अगर आपका बुक प्रॉफिट हो तो 1.5 लाख रुपए और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट हायर ऑफ द टू इज डिडक्टेबल, बैलेंस के ऊपर 60%। नाउ इट इज 6 लाख 50 के बुक प्रॉफिट के ऊपर 90% और 3 लाख व्हिचएवर इज हायर एंड बैलेंस के ऊपर 60%। बदलाव को देखें तो अगर मेरा बुक प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का है तो मुझे डिडक्शन मिलेगा कितना, सॉरी मेरा बुक प्रॉफिट माइनस 1,50,000 का है तो मुझे डिडक्शन मिलेगा कितना। आई स्टैंड करेक्टेड, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। मुझे डिडक्शन मिलेगा 150 और 90% विच एवर इज हायर का 150 का, बट एज पर द न्यू प्रोविजन मुझे डिडक्शन मिलेगा 3 लाख और 90% विच एवर इज हायर का, तो इट इज गोइंग टू बी 3 लाख रुपए। सो बिग चेंज, वेरी। ऐसा हो सकता है कि वो पार्टनर्स आर फॉलिंग अंडर लोअर स्लैब, फॉर्म इज अंडर 30%। 5 लाख का बुक प्रॉफिट हो तो पहले डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन होता था 390, अभी डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन होगा 4,50,000 रुपीज 90% स्टेट करके। 10 लाख का बुक प्रॉफिट होगा तो पहले रेम्यूनरेशन होता था, मैं लिमिट ही अप्लाई कर रहा हूं इसलिए मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, 690, अभी मिल रहा है 780 का रेम्यूनरेशन डिडक्टेबल। Sir, this is the maximum remuneration which is allowable.
Now important is that ये जो अलाउ हो रहा है फ्रेंड्स एंड माय सीनियर्स, फर्म को 30% से डिडक्शन मिल रहा है, पार्टनर के हाथ में अपने रेट से ये टैक्स हो रहा है। मेजोरिटी केस में ऐसा होता है कि पार्टनर्स आर लायबल एट अ लोअर रेट, सो ये एक बेनिफिट होगा। हमारे यहाँ एक एलएलपी थी, उसका हमने बहुत बढ़िया प्लानिंग करवाया था, जिसमें माय ऑल द पार्टनर्स वर फॉलिंग अंडर 37% surcharge, while my firm was eligible for AMT and my firm was eligible tax at the rate of 18.5% plus surcharge plus cess, so 22.5% का टैक्स रेट था। हम लोग कम रेम्यूनरेशन लेते थे, फर्म टैक्स भरती थी, पार्टनर के हाथ में कम टैक्स होता। सो उल्टी सिचुएशन थी। हालांकि ये चेंज के बाद भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन बीइंग दिस इज द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, यू पे लेस यू विल गेट लेस, तो आप लेस पे करो, आपको लेस डिडक्शन मिलेगा। बट आई कंसीडर दिस टू बी अ वेलकम चेंज। मेजोरिटी फर्म को एंड उनके पार्टनर को इससे बेनिफिट होगा। बट एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, जो बदलाव ऐसा लेके आए कि उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप के प्रॉफिट के ऊपर, सॉरी माय मिस्टेक, रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस होगा या नहीं। अर्लियर नॉट 194A में तो इसको एक्सक्लूड ही किया हुआ है, एंड 194J में कोई मेजर कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो टीडीएस नहीं करना। नाउ दे हैव इंसर्टेड 194T which says that salary, remuneration, interest, bonus commission by partnership firm to partner will be subjected to TDS at the rate of 10% if the amount exceeds how much? If the amount exceeds 20,000 in aggregate during the financial year. And friends, ये आपका जो TDS होगा, that would be at the rate of 10% under section 194T of the Income Tax Act. Friends, ये आपका एक मुद्दा हो गया। अच्छा, सेम वे, हाँ ये जो मेरा एक रह गया था ना, वो टीडीएस के रेट्स नहीं, ये थोड़ा उलट पुलट हो गया है। सो इट्स ओवर हियर, ये जो 194D, 194DA, 194G, 194H, 194IB, सबका 5% का रेट घटा के कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट जितना 2%, एक्चुअली नॉट कॉन्ट्रैक्ट जितना, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2024। 194A, सॉरी ओ वाला 1% to 0.1%, आई ऑलरेडी स्पोक। अब ये मैंने क्लोज नहीं किया है, ये इतनी स्लाइड्स थी मेरे पास में, स्लाइड्स इतनी मेरी टीम बना सकी है। देयर आर certain other points also which are part of the discussion and I am going to go for the same। उसमें सबसे महत्व का मुद्दा एंजल टैक्स। दिस एंजल टैक्स is been abolished. What is angel tax? I'll highlight. मान लीजिए कि there is a private limited company and private limited company को के पास 1 लाख शेयर्स है। 1 लाख शेयर्स 10 रुपए में इश्यू किए थे, 10 लाख रुपए में उनके पास इश्यू हुए शेयर्स पड़े। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अभी 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, उन्होंने 25,000 शेयर्स इश्यू किए एंड 25,000 शेयर्स अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 5 करोड़ रुपए लेके इश्यू कर रही है तो 2,000 रुपए का वैल्यूएशन आया, जो बहुत ही कम कंपनीज का होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वैल्यूएशन अगर 2,000 रुपए का आया तो देयर वुड बी अ ह्यूज वैल्यूएशन मेड बाय देम। मेरी गवर्नमेंट ऐसा कह रही थी 56(7)(b) में कि अगर आपका वैल्यूएशन इसका मार्केट वैल्यू नेट एसेट अप्रोच से, बीसीएफ अप्रोच से 800 रुपए ही आ रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन 2,000 एंड 800 दैट इज 1,200 रुपए will be liable for tax in the hands of company under section 56(7). एंजल टैक्स इसलिए नाम था कि किसी एंजल ने आके आपको 2,000 रुपए दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा दिए वैल्यूएशन से उसके ऊपर आप टैक्स। हमारे आर्गुमेंट क्या होते थे? हमारे आर्गुमेंट ऐसे होते थे कि सर डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से तो मेरा वैल्यूएशन 2,000 आ, तो ये अच्छा ही
डिपार्टमेंट के साइड से लिटिगेशन होते थे कि नहीं 2000 का वैल्यूएशन ही नहीं है एंड दिस दैट, ये सब बहुत ही कंट्रोवर्सी वाली बात थी। पहले ये एंजल टैक्स से स्टार्टअप को एबोलिश किया, स्टार्टअप को निकाल दिया कि भाई स्टार्टअप आप लो ना, जो लेना है। आपका तो जब पिक डाउन होता है ना, आप जब डिप डाउन होते हो, डिप डाउन उनको कुछ बोलते हैं ये लोग, तभी आपके ज्यादा प्राइस आते हैं। तो स्टार्टअप आप लो कोई भी अमाउंट से, स्टार्टअप को एंजल टैक्स नॉट एप्लीकेबल। Now Honorable Finance Minister Ma'am has in the current budget said to no one angel tax is applicable, meaning thereby 5627B is abolished. सर जी, अभी हमने एक प्लानिंग किया हुआ है, जैसा आप सर ने अभी थोड़ी टाइम पहले बताया कि हियर उन्होंने जो एंजल टैक्स में नॉन रेसिडेंट इज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। हमारे क्लाइंट है नॉन रेसिडेंट है, उन्होंने एक बैंगलुरु बेस्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, एफडीआई था, वैल्यूएशन करना पड़ा, उसमें तो मार्केट वैल्यू से इश्यू करना पड़े, वी हैव इश्यूड इट एट अ मार्केट वैल्यू। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि उन्होंने एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स परचेज किए एंड दिस शेयर्स आर परचेज्ड बाय हिम एट अ लोअर प्राइस। अब यहाँ पे अगर लोअर प्राइस से वो शेयर्स परचेज करे, ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू था हमारे लिए। अगर कंपनी ने उनको हायर प्राइस से शेयर्स इश्यू किए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी ने उसको मार्केट वैल्यू से इश्यू किए, बट उन्होंने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को रुपए की जरूरत थी, सो इट वाज अ पैनिक सेल ऑन द पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो उन्होंने जो परचेज किए वो लोअर प्राइस से परचेज किए। अगर वो लोअर प्राइस से शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के परचेज कर रहा है ना, तो उनको 50CA नंबर के सेक्शन में सेलर को कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, बायर को गिफ्ट टैक्स लगेगा। इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज कहां पे लाए हैं? एंजल आके कंपनी को रुपए दे तो कंपनी को टैक्स नहीं पड़ना। देयर इज नो बदलाव इन 50CA, देयर इज नो चेंज इन 5622। सो आई अफ्रेड इन अकॉर्डिंग टू मी ये केसेस में एंजल टैक्स इज abolished, else it remains the same. Second major change is the change which is related to the trust. Very honorable madam has provided that here trust के दो अलग अलग regime में, मुझे एक ही regime में जाना है, and those regime for the trust is, एक ही second ना please, can you have to be there to call Virag Shah? That is, I was talking about the trust, दो regime. ट्रस्ट में ऐसा हो रहा था कि 1023C ट्रस्ट, 1112A, 111213 के एग्जाम्पशन वाला गवर्नमेंट सेड कि लेट अस सिंप्लीफाई। 1 अक्टूबर 2024 के बाद no application would be entertained under 1023C. Those applications which are made under 1023C and pending, वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट उसको डिस्पोज ऑफ कर देगी। पर जब रिन्यूअल के लिए जाओगे तब तो 11, 12, 13 की एप्लीकेशन करने की, क्योंकि अभी दोनों के टैक्स रेट्स, दोनों के प्रोविजंस को सिमिलर कर दिया है। अच्छा, दूसरा 12AB ATG, यार इतने इश्यूज है ना पूछो बात। पोजीशन ऐसी हो रही है यहाँ पे कि 12AB 10 और ATG में डिलेड एप्लीकेशन, कॉन्डोनेशन एंड व्हाट नॉट। हमारे यहाँ पे तो अभी इतने डिले हो रहे हैं। नीलेश सर, हमारे ही एक क्लाइंट ने एप्लीकेशन कर दी CIT एग्जाम्शन को एंड फिर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया saying obviously not registered. Now look at the effect. दो इफेक्ट होगी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। तो पहला तो हर एक साल के लिए हमारा ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड गिन के टैक्स लगेगा। चलो वो तो ठीक है, हम इसमें एक्टिविटी बंद कर देंगे, हम नया ट्रस्ट स्टार्ट करेंगे मान लीजिए। पर साहब व्हाट अबाउट द टैक्स व्हिच इज पेबल बाय द ट्रस्ट अंडर सेक्शन 115T व्हिच टॉक्स अबाउट द टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ एग्जिट। इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क। ट्रस्ट का वैल्यूएशन करके ट्रस्ट को एक बार तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड में जाए। सो दैट वाज अ बिग डिसएडवांटेज। सो we went to tribunal ने luckily
मैटर को रिवर्ट बैक किया एंड कहा कि ये प्रोविजंस बहुत ही चेंज हो रहे हैं, चेंज हुए हैं, जो समझ में नहीं आए ऐसे हैं, सो आप इसका डिले कॉन्डोन करो एंड एक अपॉर्चुनिटी दो। Now, as the judiciaries were liberal, nowadays it has been provided that application for condonation of delay should be entertained nicely. That is very specifically provided because थोड़ा बहुत डिले तो चलता है। दूसरा, अब तक का कायदा ऐसा बोल रहा था कि अगर मैंने एप्लीकेशन की है रजिस्ट्रेशन के लिए तो CIT exemption should pass my order within 6 months of the end of the month in which I have made the application. Now they say he has to pass the order within 6 months of the end of the quarter in which I have made the application. Meaning that मैं आज एप्लीकेशन कर रहा हूं तो अब तक पुराने प्रोविजन के मुताबिक CIT एग्जम्पशन को ऑर्डर पास करना था 31 जनवरी 2025 तक। अभी नए प्रोविजन के मुताबिक CIT एग्जम्पशन को ऑर्डर पास करना है 31 मार्च 2025 तक। It is 6 months of the end of the quarter in which I have made the application. So that is an additional time which has been provided to them. And I would put this way, rectification powers to be assigned online, CIT appeal effect, tribunal effect, powers assigned online. And this is according to me a welcome because हमारे यहाँ ही हो रहा है कि एक असेसमेंट ईयर 9-10 के केस में एक क्लाइंट के केस में अपील इफेक्ट नहीं दे रहे हैं एंड दैट इज क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर द सेम। To encourage the foreign company for making the investments in India to start their business in India, the tax rates on the foreign company has been reduced from 40% to 35%. So that is also a good change for the foreign company. And there are certain other small changes like adjustments of refund जो गवर्नमेंट हमारी करती है या आई वुड से कि गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है टैक्स के लिए तो उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, ऐसे भी छोटे मोटे चेंजेस अवर गवर्नमेंट हैज I would say authority has made in the current year. The Honorable Finance Minister Ma'am has proposed in the current year. I am not touching upon certain provisions like non-resident shipping business. Yeah, I am not touching upon the provisions related to this safe harbor rules वगैरह because मुझे ऐसा है कि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोगों को एप्लीकेबल है एंड मुझे ऐसा था कि ये पर्टिकुलर जो हम अभी स्पीच रख रहे हैं बजट के लिए जो अभी लेक्चर रख रहे हैं वो एक नॉर्मल ऑन द वेरी फर्स्ट डे एनालिसिस लग रहे हैं तो वो मैं यहाँ पे नहीं कवर अप कर रहा हूँ सेफ हार्बर वगैरह एंड एज फार एज दिस सेट ऑफ रिफंड इज कंसर्न उनकी भी एक छोटी सी प्रोसीजर इन लोगों ने प्रिस्क्राइब की हुई है और उसके मुताबिक यस दे हैव राइट टू विथहेल्ड योर रिफंड। अच्छा, दूसरा छोटे मोटे लिटिगेशंस को कम करने के लिए दे प्रोवाइडेड कि मुझे अपील करनी हो ना CIT अपील को या ट्रिब्यूनल को या हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को तो उसके लिए कोई टैक्स इफेक्ट की लिमिट नहीं है, तो डिपार्टमेंट को करनी हो तो टैक्स इफेक्ट की लिमिट है एंड दैट लिमिट हैज बीन increased to 60 lakh, 2 crore and 5 crore, meaning thereby if tax effect doesn't exceed 60 lakh they cannot go to ITAT, if it doesn't exceed 2 crore then they cannot go to high court, if it doesn't exceed 5 crore they cannot go to supreme court if I'm not mistaken। ये वो लिखा हुआ पेजेस handwritten, so these are the change in the limit। ऐसा हो सकता है कि जहां तक मेरा नॉलेज है वहां तक ये लिमिट 50 लाख थी ट्रिब्यूनल में जाने के लिए एंड नाउ दैट लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 60। तो जो 50 से 60 वाले लोग थे ना वो शायद ऑटो निकल जाएंगे, डिपार्टमेंटल अपील वुड बी डिसाइडेड विदाउट हियरिंग इन द फेवर ऑफ द हजरत। तो इतने अकॉर्डिंग टू मी छोटे छोटे
मेरी साइड से बदलाव है. Just give me a moment. I'll shuffle if I'm missing something which is important for the August gathering. And yes, how can I forget this? That is a new scheme called Vivad se Vishwas has been brought in by the Honorable Finance Minister, ma'am. If there are number of litigation going on at all the level, uska koi I would say notification, we have to await the notification. But I'll put it this way, that as far as the Vivad se Vishwas scheme is concerned, Honorable Finance Minister ma'am ne kaha that they are coming out with 2024 Vivad se Vishwas scheme. Lastly, it has introduced in the year 2020, got a good response. So again, they are coming out with this Vivad se Vishwas scheme. Another 2-3 छोटे changes. One, salaried class. जो मैं बोल रहा हूँ ना, बेनिफिट्स दिए हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 का 75,000, नए रेजिम में 14% का बेनिफिट एनपीएस में. वैसा ही मान लो सैलराइड क्लास ने कार परचेस की, सैलराइड पर्सन ने कार परचेस की, तो वो कार उन्होंने परचेस की, उसके ऊपर टीसीएस हुआ हो. मान लीजिए उनका टीसीएस हुआ है 2 लाख रुपए कार परचेस में, और उनका सैलरी है मान लीजिए कि 40 लाख रुपए, उनके ऊपर टीडीएस होना है 192 में. There is a change made under 192. Generally under 192, you can adjust allowable deduction if you are going for the old regime वगैरह. And you have to calculate the average tax. बाकी आपको किसी का भी benefit नहीं मिलता है. But Honorable Finance Minister, to give more liquidity to the salaried people, have said that जो TCS हुआ है, वो TCS अगर आप मान लो फॉरेन ट्रैवल की थी सैलराइड पर्सन ने और उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट हुआ था, या फॉरेन रेमिटेंस की थी, उनका लड़का वहां पे पढ़ रहा है और टीसीएस हुआ था, तो ये टीसीएस 192 के सैलरी के टीडीएस के सामने एडजस्ट हो पाएगा, एंड ओनली बैलेंस विल बी सब्जेक्टेड टू टीडीएस अंडर 192. मान लो उनका 30 लाख रुपए के ऊपर सैलरी के ऊपर टैक्स आ रहा है, मान लीजिए 6 लाख रुपए के आसपास, मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूं, और अब तक उनका टीडीएस 194 में 6 लाख रुपए होता था, 50,000 रुपए हर महीना होता था, तो उनकी टेक होम सैलरी जो 2.5 लाख में से 50,000 टीडीएस हो गए 2 लाख ही होती थी, और प्लस लाख रुपए का टीसीएस हुआ, जो वो रिटर्न भरता था तब उनको रिफंड मिलता था. 1 अप्रैल की डेट से उनको उसके ऊपर गवर्नमेंट एक अच्छा सा 6% का इंटरेस्ट देते थे. अभी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तू टेंशन ना ले, तेरा अगर टीसीएस हुआ है 2 लाख रुपए का, तो तेरा टीडीएस 192 में 4 लाख ही होगा, which would be approximately 33,000 per month, and you will be able to get more take home from the day there is TCS which you are intimating your employer. So ये भी एक अच्छा सा बदलाव है. Thereafter I'll just a moment, we'll check monetary limit. I have spoken. Foreign company tax rate, QA abolished, NPS, and yes. So I would say these are the major changes in the Finance Bill 2024, Finance Bill number 2, 2024, by Honorable मैडम फाइनेंस मिनिस्टर. मैं क्लोजिंग में 2 चीज कहूंगा. एक, एज फार एज दिस बजट इज कंसर्न, जो मैडम जी ने उनके बजट स्पीच में कहा कि मेजॉरिटी पीपल आर ऑप्टिंग फॉर द न्यू रेजिम, बी इट बी कंपनी और बी इट बी द इंडिविजुअल. डेज आर नॉट फार wherein we will have only the new regime. नंबर 2, जैसा मैडम जी ने कहा कि आई वॉन्ट लेस लिटिगेशन, मुझे लिटिगेशन कम चाहिए. हालांकि मुझे ऐसा थोड़ा कम लग रहा है कि लेस लिटिगेशन हो गए. लिटिगेशन तो मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेटली बढ़ते ही जाएंगे, बट उनका इंटेंशन ऐसा है कि लेस नंबर ऑफ लिटिगेशन हो. लाइक सीआईटी अपील को पावर दे दिया कि यू सेट बैक द केस, set aside the case and revote it back to the A under 144 वगैरह.
सो उनको ऐसा है कि भाई उसमें थोड़े कम लिटिगेशन हो या AO will do the needful. So the intention is less litigation. Number 3, जैसा मैंने इलस्ट्रेटिव मोड में बोलने की ट्राई की कैपिटल गेन से, that government wants more and more white money in the market. Not only that, ये जो हम अभी अपने रिटर्न भरते हैं टू क्लोज, उसमें फॉरेन असेट की डिटेल मेजोरिटी केस में हम नहीं डालते। गवर्नमेंट ने बोला इफ यू हैव नॉट पुट द डिटेल ऑफ द फॉरेन असेट्स, foreign investments, and if it is caught at a later stage, I am afraid we will be considering the same to be unexplained, and we will come out with all the consequences which you have to bear. So ये तब भी छोटे छोटे चेंजेस जो है वो भी काफी I would say पैनिक हो गए, पैनिक क्रिएट करेंगे हमारे टैक्स पेयर्स के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली मोर इम्पोर्टेंटली टैक्स कंसल्टेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, क्योंकि क्लाइंट तो बोलेगा कि आपने जो किया वो मैं देख रहा हूँ। क्लाइंट को ऐसा नहीं है कि ये करना था ये नहीं करना था, ठीक है आप जो करो वो फाइनल है। कुछ अच्छा हुआ तो क्रेडिट उनकी है, कुछ बुरा हुआ तो डिसक्रेडिट ऑलवेज हमारी होती है। सो ये एक चीज मुझे कहनी थी। एंड सेकेंड, टू टेक दिस बजट analysis of the budget on the same day was a challenging task. मैं अब तक ऐसा बोलता था, to be honest with you, कि मुझे 2 फरवरी से मैं लेता था बजट, क्योंकि one night time I want, जिसमें पूरा हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या है। बट when विराग भाई called me and said कि इतने सारे एसोसिएशन है जिसमें आई वुड से कि मध्य प्रदेश, मैंने काफी बार उन लोगों की खातिरदारी देखी हुई है, लखोटिया साहब थे, कुशवाहा साहब थे, अग्रवाल साहब थे, सभी थे, तो उनकी खातिरदारी देखी हुई है। विराग भाई के साथ बहुत क्लोज कनेक्ट है, गुजरात के अपने मित्र एसोसिएशन है इतने सारे, तो आई कुडंट से नो। बट एक बार हाँ कहने के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा टेंशन हुआ कि क्या करेंगे। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर वॉट एवर आई अंडरस्टूड, बिकॉज आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग जो मुझे अच्छे से पता। मैंने विराग भाई को बोला था कि मैं टेक्निकल नहीं करूंगा ज्यादा, मैं ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, बट थैंक्स टू माय टीम, दोज हु वर्कड हार्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, जितना भी कर सके और जितना भी मैंने ओरली बोले हैं प्रोविजन, उसका डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स बाय tomorrow or maximum a day after tomorrow due to this return season. And I'm highly obliged and very much thankful to all the associations and all the office bearers, all the participants. Thank you very much. Thank you Virag bhai, and thank you. Over to you, sir. Thank you so much, sir. You have done a wonderful job to explain the provision by example and taking particularly my name for so many times for the example. So grateful to you, sir. You explained the provision also very wonderfully, and I think all have enjoyed your session. A wonderful session, I would like to say. मैं लखोटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप कुछ बोलिए और वोट ऑफ थैंक्स दीजिए हमारे स्पीकर सर को। सर पलक पावगढ़ी को हमने मध्य प्रदेश में बहुत सी बार सुना है, और मतलब इनकी जो सेक्शन रहे हैं वो आज भी हम याद करते हैं, और हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आपको मध्य प्रदेश में बुलाएं, और वापस से एक बार बहुत जल्दी हम आप बुलाने वाले हैं। और आज का जो सेशन रहा, ये लग रहा था कि इनकम टैक्स में इतना बदलाव नहीं है, लेकिन अभी आपसे जब सुना तो लग रहा कि वास्तव में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है। तो हम थैंकफुल सर, हम सबकी ओर से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज विराग सर से बोलूंगा कि आगे। जी सर, thank you sir. We have also already Aanchal madam is already joined with us. We are welcoming you ma'am. Thank you so much for joining. और आपको सुनना भी हमेशा अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश में आपकी ऑडियंस ऑलरेडी है, बहुत चाहने वाले आपके कि आपका सेशन एक बार सुने, और एक बार नहीं बहुत बार सुने। और आपकी जो स्टाइल है, जो पावागढ़ सर की स्टाइल है, जो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो आप एक्सप्लेन करते हो,
वो बहुत ही अच्छा लगता है सभी को. So thank you so much, sir, Palak sir, for explaining all the provision wonderfully. And before we start, Aanchal ma'am, we have our growth partner, P. Parag Jain. Yes, Palak sir. Thank you once again, sir. Thank you so much. Despite of a busy schedule, you have given time and explain on day one. So once again, thank you so much. I would like to request now Parag Jain, who is from team EMSME, our growth partner, to explain the concept of EMSME and platform. जो गवर्नमेंट स्कीम, जो आज भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम आई MSMEs के लिए, तो क्या प्लेटफॉर्म बनाया और कैसे फ्रूटफुल हो सकता है हमारे ऑडियंस के लिए. इन ब्रीफली, ओवर टू यू Parag ji. So thank you, Virag bhai, for introducing me. So this is CA Parag from Team EMSME. Our Team EMSME delivers a overall platform for MSMEs. So we are supporting MSMEs in every possible way we can. We have created an automated scheme discovery platform for MSMEs, where MSMEs can search their government schemes online with just their Udyam registration. Also for professionals, we have created a product named as Pro Se Pucho, where you can directly give consultancy on the basis of the minutes. And on this auspicious day of budget, I would like to add my knowledge of understanding of budget regarding few schemes which have came into the light today. So there is already a credit guarantee scheme available for MSMEs, but now this is today they have announced it for specifically for manufacturing sector. So they'll be creating a fund just like the existing CGTMSE scheme, which is already famous. They'll be creating a separate fund for manufacturing, and their scheme will be credit guarantee scheme without collateral, and there will be a guarantee fee they have to pay upfront and on reducing balance. Also the famous scheme is Mudra scheme, where they have created a budget for Tarun who have repaid the existing loan successfully. So the limit has been increased from 10 to 20 lakhs. All these schemes you can directly search through Udyam from our website portal, which is updated as and when the scheme is operational, and the inoperative schemes we remove as and when they becomes inoperative. So you can come and check our website, and we have already a network of 253 chartered accountants, and other professionals are also joining us in this nation building. So kindly join us as well. Thank you Parag bhai. Would like to request each and everyone to subscribe the EMSME on social media. They are sharing the reel and the knowledge update in a small bites, in a 1 or 2 minute video bite, or we can say a Instagram reel. With this, the knowledge sharing can be done for the growth of the MSME sector, because all we are as in professionals serving the MSME. So I thought to include the EMSME as our knowledge partner. And now we request our national speaker, say Aanchal Kapoor ma'am, to have a address. There are so many changes in GST and indirect taxes, basically mainly in custom and also in GST. So we can have to update our knowledge on that aspect as well. So over to you, Aanchal ma'am. You can share your screen and address the attendees. Thank you so much again to all the organizer, all the joint organizer and association for joining, and still they are watching the webinar as well. So over to you, ma'am. Thank you so much, Virag ji. It's always my pleasure to deliberate on your platform, and what else can be better than doing it with the Madhya Pradesh Tax Bar Association, where all the known faces are sitting there. Ashwini Lakhotia sir is there, Santosh sir is there, Nilesh ji is there, Anil Agarwal ji is there. So it is all my pleasure to deliberate in the presence. And yes, that too on the first day of the budget. बहुत सारे चेंजेस इनकम टैक्स में आए हैं, बहुत सारे चेंजेस जीएसटी में भी आए हैं. कुछ हमें ऑलरेडी पता थे क्योंकि 53rd काउंसिल मीटिंग हो चुकी थी, और कुछ में इसमें भी पता लगेंगे जो प्रोविजंस है उन चीजों के वो क्लैरिफाई किए गए हैं. सो विद दिस, to all the attendees also, I wish all a very good evening. And थोड़ा सा अगर मैं बजट पे बोलूं, I myself really like the budget.
Lots of changes are there. चाहे आप डायरेक्ट टैक्स की बात करें, चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, विकसित भारत की बात की गई, और सबसे बड़ी बात, when the inflation is growing all over the world, India has tried to manage the inflation at 4 point something, below 5% of the rate, and that is with what is being projected also, which is very, very good. 4 main areas को focus करने की बात की गई है, maybe the farmers, अन्नदाता, poor, garib, yuva, youth, and महिलाएं, women. How women can be left behind, anywhere. Anyhow, so all these 4 areas have been focused. Yes, what is important? Employment generation in the nation, skill development in the nation. So these 2 areas have also been focused a lot, along with MSMEs, as Abhi Parag ji has explained about the MSME concept. So government has also bring in certain changes, made with the mudra loans, made with some other schemes. Now coming towards the GST. So Viraji, how can I just can I see the chat with the people? They can interact with me through the chat box. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 second. All right. So Ma'am, you can share your screen if you have PPT. I am sharing. Visible. Yes, ma'am. Screen is visible. You can see the chat in the question tab, ma'am. In the Q&A tab? Yes, ma'am. That is the interaction or a chat box kind of thing. They will post there, ma'am. Right. In the questions tab, right? But when I will shift to questions, it will not show my screen. Anyhow, yes. Ramniji, I couldn't get. I will read your question baad mein. Anyhow, now I come to the point that, okay, let me connect to the screen. Sir, keeping apart the politics, let me come towards the propositions that have been put for the GST related here in this budget. So talking about the GST related provisions, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे changes आए हैं, may it be charging section में, और ना जो litigations थी, बहुत देर से pending थी, for so long since time GST has come into being, many of them have been clarified firstly through the circulars जो 53rd council meeting के बाद आए हैं, and now through the various act changes, क्योंकि 53rd council meeting when it happened, the changes which needed the clarification that has been done through the circulars, and those changes which required the act amendments that have been brought through the budgetary amendment. Yes. Now, what are the sections? जैसे बहुत सारे disputes हैं, I'm not going section wise, that you can see on my screen. But what I want to tell you, there were disputes regarding alcoholic liquor, the ENA, the raw material, the rectified spirit, because the distilleries were really in pain, whether they are covered in the GST or they are covered in the VAT. So for the final product, there was clarity. Alcoholic liquor for human consumption was not covered under GST. But what about the raw material? So now they have covered that undenatured ENA, rectified spirit, which is used for the preparation of alcoholic liquor as no GST item. The major and the biggest changes, introduction of section 74A. We will be discussing 74A in detail, but my dear friends, when you will go for the changes and when you will see that, तो बहुत सारे changes in the budget are just because of the introduction of 74A. Wherever required, along with 73 and 74, they have now put in 74A, which is the consequential amendments due to insertion of new section, that is 74A, and which is going to be very, very interesting. And yes, one of your favorite amendments, 128A insertion, which you all must be waiting for. No interest, no penalty, in subject to certain conditions. We will be dealing with it. Apart from that, government has introduced many enabling provisions where a power has been created in the law that in the times to come, in the future, government will be bringing in certain provisions through rules, etc., which will be brought in. So many enabling provisions have been introduced in this budget.
16.4 related changes that were proposed in 53rd meeting have been brought in for the year 17-18, 18-19, 19-20, and 2021. Even the revocation of the cancellation effect for 16 subsection 4 has also been introduced by inserting two new sections, 16.5 and 16 subsection 6. Apart from that, there are a number of changes which are there on your screen. Now let me take up the amendments one on one. Pre-deposit ka maximum amount has been reduced and such other changes are there. Now let me come to the provisions one on one basis. All right. So friends, if I talk about that when these changes of GST Act will be applicable, so GST Act provisions are contained in section 100. Let me use the in the section 110 to 146 of clause of the Finance Bill 2020-24, and these will be coming into force from the date the changes will be notified. So it is not from 1st April 2024, but the GST changes will be coming from the date to be notified. This is a list that what is the section of the clause of the relevant finance bill and which section it is amending and to what thing it is related to. So this is a summary sort to check that which corresponding section of GST has been given the effect. Now coming towards the provision of the CGST Act, the first and foremost change in all the three acts, CGST, IGST and UTGST, is that denatured extra neutral alcohol, ENA, what we call in short, is not covered because liquor industry की problem ये थी, their inputs they were trying to cover under GST, but their output was not covered under GST. Now the government has made that change that yes, the ENA is not covered under GST provision and hence it will be liable to the VAT tax. So the relevant changes have been made in CGST Act also, IGST Act also and UTGST Act also. Chaliye, so that has been kept outside the purview of central tax. Apart from that, clause 112, power not to recover the tax not levied as a result of journal practice. Friends, clause 112 में the changes have been introduced that in the section, in a new section 11A stands inserted. And what is that section 11A? This is again an enabling provision. And what is this enabling provision? Many times it happens that the person says that, okay, this is the industry trend, journal practices that are being followed. So a power has been given to government to regularize if there is non-levy or short levy due to any journal practice prevalent in the industry. They have now got the power through the insertion of section 11A that they can make the provision to recover GST, which due to the journal, we see now nobody in the industry is paying the taxes. If due to any result of a journal practice, the tax is not getting levied or it is getting short levied, the rate is not correctly charged. So this is an enabling provision in which the government in the times to come can frame the rules. Example, animal fat oils, vegetable fat oils. There are certain litigations in the classification issues. So this is an enabling provision making the government to go ahead one step, and they can even, they got the power to recover the GST on that, to regularize the non-levy and the short levy. Okay, now, time of supply of services. Friends, I want you all, I'm not able to interact so much because when I open question tab, so my screen goes away. Anyhow, I just tried once. Yeah. Okay. Now, if I say, that if I talk about the next section, which is talking about the time of supply. So two sections we have to relate. One is section 30 and another is section 31. And you know where the base of the same lies? The base of the same lies in the issue. Okay, just tell me how many types of RCMs are there? Two types of RCM. I just explain you in a minute if I get some space here. Look, two types of RCM are there.
I'm just using this a little space. First, where the taxpayer is registered, and second, where the taxpayer is unregistered. So two types are there. If the taxpayer is registered, then, for example, advocate service. You took the service of advocate, but the advocate is registered under GST. Then in that case, the invoice will be issued by the advocate only. No self-invoicing. But in case the taxpayer, the provider is not registered, then in that case, self-invoicing needs to be done. Now, when the government has said and made and recognize these points of RCM being of two types, from registered or from unregistered, likewise, they have separated the time of supply and tax invoice for both registered person RCM and unregistered RCM. Simply saying, अगर तो आप एक ऐसे एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे एडवोकेट से सर्विसेज ले रहे हैं जो वो रजिस्टर्ड है, तो वो आपको अपना इनवॉइस देगा. अगर आप ऐसे एडवोकेट से सर्विसेज ले रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड है, आप सेल्फ इनवॉइसिंग करेंगे. गवर्नमेंट ने इस 53rd काउंसिल मीटिंग में भी कहा कि जहां आप सेल्फ इनवॉइसिंग करते हैं, वेयर द अनदर पर्सन इज अनरजिस्टर्ड. लुक, एडवोकेट कोई भी हो, जब वो एडवोकेट सर्विसेज देता है, द सर्विसेज व्हिच आर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, वो उसके ऊपर तो आरसीएम लगना ही लगना है. बट इनवॉइसिंग कौन कर रहा है इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. क्यों? 53rd काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का आरसीएम है जिसमें आप सेल्फ इनवॉइसिंग करते हैं, एंड गवर्नमेंट केम अप विद द सर्कुलर आल्सो ऑन द सेम, जिसमें आप सेल्फ इनवॉइसिंग करते हैं, उस केस में 16/4 का टाइम पीरियड लगेगा द डे यू आर इशूइंग द इनवॉइस. एंड एज अ रिजल्ट आप उसका क्रेडिट कब तक ले सकते हैं? नेक्स्ट 30th नवंबर तक. आई गिव यू एन एग्जांपल. 2020 में आपने एक एडवोकेट सर्विसेज ली. जब आपका 23 में चेकिंग हो रहा था, सो यू गॉट टू नो कि एन आरसीएम हैज बीन स्किप्ड. इन 2023 आप उसकी सेल्फ इनवॉइसिंग करते हैं एंड यू पे द टैक्सेस अलोंग विद इंटरेस्ट. Now, question arise, what about ITC? 2020 का टैक्स I am taking the credit in 2023 or 2024. Now, in this case, it says if you are doing it in 2023, so the date applicable will be, and you are raising the invoice in May 2023. Let's suppose the date of 16/4 will be 30th November 2024. Till then, you can take the ITC of the same. Now, in line of that change, the government has mentioned change the time of supply provision also and section 31 invoicing provision also. Previously, in 13 subsection 3, there were only two parts, A and B. And here, these words were not there. It was only therefore by the supplier. Now they have inserted subsection C, the clause C, and said this B point, 60 days time period from the date of invoice will be applicable only when this type of RCM is there. Registered person RCM, meaning thereby where the invoice is being issued by the supplier and where there is reverse charge from the unregistered person. No 30 days time period has been provided. It means the time of supply will be, if you are issuing it in the month of May, let's suppose 20th May 2023. So it will be taken as 20th May 2023, the date of issue of invoice. So no 60 days time period. Now, what they have done, they have made two separate provisions. RCM, time of supply for registered, RCM, time of supply from unregistered, where there is self-invoicing. Where there is no self-invoicing, where the person is registered, 60 days from the date of invoice or payment ka to whichever is earlier, hey, where invoice is self-generated invoice, in that case by the recipient, no 60 days time period, date of issue. Now, in this case also, now I come to section 31 change. Section 31 में also they have now made two clauses, F and G.
it says they have added that the time limit for the same will be provided in section 31G also, stating that the when self-invoicing time period needs to be done. So in this, they have particularly mentioned that the self-invoicing cases में 60 days का time period for the time of supply will not be granted. Now, I move to section 16. In section 16, there are two subsections that got inserted. Firstly, M ट्रेड लिंक्स का केस आया था जिसमें कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया कि आप 30th 11 का टाइम राइट फ्रॉम 2017 ले सकते हैं फॉर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4. Government even moved further steps and they introduced that subsection 4 का जो टाइम पीरियड है for the year 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 सब के लिए हम 30th November 2021 कर रहे हैं. They have given the extended benefit कि अगर आपने input लिया है 30th November 2021 तक भी, so the ITC will be allowed. So 16 subsection 4 के बाद they have inserted 16 subsection 5 stating forget 16-4 time periods. For the year 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, the time limit will be up to 30th day of November 2021. And what else case they have covered? One more. They have covered the revocation case also. I'm just telling you in the form of a story that if your number is revoked, let's suppose आपका number 6 months से cancelled था. You applied for the revocation. The revocation got approved. After the cancellation, subsequently, the cancellation of the registration is removed, maybe under section 30 or due to any order by the appellate authority, you went into the appeal and now the number is open. Now the person has a pendency of 6 months of return. When he will file these 6 months return, he will have output also or input also. Now the question comes, अगर 30 नवंबर का टाइम निकल गया होगा जब पिछली रिटर्न्स में भी 6 months में भी 10 months जो उसकी पेंडेंसी थी, अगर तो 30th नवंबर का टाइम अभी भी है तो 30th नवंबर तक आप आराम से अपनी रिटर्न भरिए और आईटीसी एंजॉय करिए. अगर 30th नवंबर तक नहीं है तो जब से आपकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुई है, अब उसकी 3B जब आप फाइल कर रहे हैं आप उसमें आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जो पेंडिंग रिटर्न्स है वो 30 डेज में फाइल कर दे. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, या तो 30th नवंबर का टाइम पीरियड अभी रहता है जब आप इकट्ठी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, फॉर एवरी रिटर्न यू आर फाइलिंग, सो यू कैन टेक आईटीसी अप टू द 30th नवंबर डेट पेंडिंग आईटीसी. If the time period of 30th, because whichever is later है ना, here it is whichever is later. So within 1 month, within 30 days, file your returns after revocation and you will be eligible to take the ITC in that. But my dear friends, government covered the cases of 17, 18, 18, 19, 19, 20, 2021, a welcome move. They also covered the revocation cases, but what is not covered is the MNST scheme. I hope you are getting that. MNST scheme में को यहाँ पर cover नहीं किया गया, and there are many cases where owing to MNST scheme, the credits are taken beyond the dates prescribed under section 16(4). So here is a question mark for the same. So I hope you all are getting what we are saying. Can I see a little thumbs up in the chat box? Can I see so that I can get to know you are there? Achha, it is either not reaching me or you are not listening me. Anyhow, let's move forward. If I talk about the next provisions, yeah, it has now come to me. You can see a few. All right. Now, if I talk about the next points, section 74A, the most important section that has been inserted. Friends, government ने 73 or 74
लखोटिया सर 73 और 74 दो सेक्शंस थे, राइट? 73 सेक्शन में नॉन फ्रॉड केसेस थे और 74 सेक्शन में फ्रॉड केसेस थे. Fraud, misstatement, and suppression of facts, etc. Government has merged both the sections. From 24-25 onwards, meaning thereby for the year 23-24 till the year 23-24 financial year, the assessments, the adjudications will be framed as per the provision of 73-74. Till 23-24 there is no change, but from 24-25 onwards they have inserted a new section which is 74A, and what it has to say, what are the differences, और जहां जहां reference था section 10, 21, 35, 65, 66, 64, 51 and so on, 59, wherever they have put in 74A. So these are the consequential changes for 74A insertion. Now ये section कहता क्या है और इसका purpose क्या था? ऐसा होता है sometimes if you have seen the service tax cases also, government ने notice issue कर दिए department में by applying the provision of extended period of limitation. Later on courts used to help कि there is no fraud, misstatement, as a result there is no extended period is not applicable, and we also take the ground extended period is not applicable, but the entire notice used to go in vain. Department was not able to recover. In order to mitigate that thing, यहाँ पर एक section 75 insert किया गया कि okay, अगर आपने notice 74 का issue किया था और later on it was held that the fraud or misstatement nahi hai, so it can get converted into section 73 notice after intervention of the appellate authorities or the courts. Now government has moved one more step ahead. एक step और आगे चले गए, बोलते दोनों sections को इकट्ठा ही कर दो ना, क्यों रखे 73 for fraud cases और क्यों रखे 74 for non fraud cases? Merge them, एक ही notice आएगा, उसमें मेंशन होगा, और वो नोटिस अगर प्रोविजंस अलग अलग होंगे अगर आप फ्रॉड केस में और नॉन फ्रॉड केस में, और दोनों का टाइम पीरियड सेम कर दिया गया. इफ आई कैन शो यू, आई जस्ट शो यू 73 में पहले टाइम पीरियड था ऑर्डर पास करने का 36 मंथ्स और नोटिस इश्यू करने का 33 मंथ्स, 3 मंथ्स बिफोर 33. 74 में टाइम पीरियड था 5 इयर्स ऑर्डर पास करने का, इसमें 3 इयर्स और इसमें 5 इयर्स ऑर्डर पास करने का, और 6 मंथ्स बिफोर यानी 54 मंथ्स तक एनुअल रिटर्न से नोटिस आपको आ सकता था. Now this time period has been revised, both the sections have been merged, and now this says within a period of 42 months. Sir, non-fraud cases में time period extend हो गया from 33 months to 42 months, and for 74 reduced from 54 months to 42 months. What they say, 42 months में आपको 74A का नोटिस आएगा. Now when you check the wording of 74A1, same है, where it appears to the proper officer, any tax not paid, short paid, erroneously refunded, ITC wrongly availed or utilized, all things remain same. Person chargeable with tax has not been so paid or where it has been shortly paid, but यहाँ से जो words हटे हैं first section में due to fraud, misstatement and suppression is not mentioned. He is liable to pay the tax along with interest and penalty. Next, they have added that okay, छोटे notices नहीं आएंगे. If the amount is below 1,000 rupees, the notice will not be issued. Issuance of notice time period has been taken to 42 months from the date of furnishing of annual return, due date of annual return for the financial year, or 42 months from the date of erroneous refund. So now
if any notice has been issued, the same section remains, meaning thereby 36 months, 33 months notice का time period था, 36 months order pass करने का था, 54 months notice देने का था और in fraud cases, and जो order pass करने का था वो 5 years था. Notice pass करने का time 33 और 54 से change करके 42 months कर दिया गया है. Now that both the sections remain same, that the grounds, the service of notice, etc. should be same. Penalties also remain the same. Likewise, जैसे non-fraud cases में 10% थी of the tax due or 10,000, whichever is higher. Likewise, the same has been prescribed here. But in case of fraud, full misrepresentation or suppression of fact cases, it will be 100% of the tax due. And similarly, it has been provided कि अगर notice issue करने के, now the time period from 30 days have been changed to 60 days. 60 days के अंदर अगर आप, let me show you the slide, one second here. अगर सब कुछ सेम है, नॉन फ्रॉड केस अगर आप here this has been replaced within 60 days, अगर आप 60 days के अंदर ऑफ द SCN कर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है. These are non-fraud cases and these are fraud misstatement cases. 15, 25, 50, 100 and no penalty. Here it is 10% and or 10,000, whichever is higher. So provision remains same. Penalties remain same, but there is merging of two sections. Now let me take you to the analysis of the same. Proper officer, where you believe that the tax is not being paid, short paid, and NSC refunded, you will issue the notice within 42 months, right? Below 1,000 amount of tax or ITC, notices will not be issued. For reason other than fraud, the penalties remain 10% or 10,000. For reason of fraud and misstatement, 100% of the tax due. Now, time period of passing the order. It is 12 months from the date of issuance of the notice under subsection 2. इसका मतलब अब आपको 12 जब से नोटिस इशू हुआ है पार्टी का उसके 12 मंथ्स के अंदर ऑर्डर पास करना है और नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी. ऑफिसर इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है बाय रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग एंड दैट टू अप टू 6 months. मींस मैक्सिमम ऑर्डर पासिंग पीरियड इज 18 months. 12 plus 8. 12 months from the date of issuance of notice. पहले क्या था? There was a particular time period, 5 years from the due date of annual return, 3 years from the due date of annual return. Now, जिस person को जब notice जाएगा, उसके issuance of notice की date से, date of issuance of notice से, उसके 12 months count होंगे और या उसके 6 more months यानी 18 months count होंगे. So there is overall change in the provisions of section 73 and 74. What it says that okay, अब हम इकट्ठा notice issue करेंगे. Likewise, section 75 में भी change किया. अगर ऑफिसर को लगता है एक नोटिस इशू किया गया है जिसमें फ्रॉड का चार्ज नहीं था, सो दे हैव बीन गिवन द पावर टू रीडिटरमाइन द पेनल्टीज एज इन केस ऑफ फ्रॉड एंड मिसस्टेटमेंट. सो फर्दर सेक्शन 75 हैज आल्सो बीन अमेंडेड टू इंक्लूड द रीडिटर्मिनेशन of the provision, but all these provisions are applicable from 24-25 onwards. यानी अभी 19-20 की असेसमेंट्स आप करा रहे हैं. अच्छा, can anybody tell me 19-20 के असेसमेंट्स का टाइम पीरियड क्या है और एडजुडिकेशन का? 17-18 हो चुकी, 18-19 हो चुकी. सेक्शन 73 की, सेक्शन 73 का टाइम पीरियड है 31 अगस्त तक, जो अभी आप कराने जा रहे हैं. सो 19-20, बेसिक के 21-22, 22-23 सेक्शन 73 और 74 के अकॉर्डिंग चलेगा. पोस्ट दैट 24-25 onwards it will be done under section 74A.
Now, coming towards one of the major section change, which is 128. Okay. If I talk about, somebody has written me a message to please mix Hindi and English. I'm already doing the mix of Hindi and English. तीसरी और आती नहीं है, पंजाबी आंदी है, वो मैं बोल सकनी है. If you permit and you can understand. Now Nilesh ji got a little smile on his face after hearing to this. So section 128A, जिसकी आप लोग बहुत वेट कर रहे थे, कब आएगा? पार्टी के इंटरेस्ट देने वाले हैं, पार्टी की पेनल्टीज देने वाली है, गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है. So now the time has come where the government has introduced the provisions of 128A, waiver of interest penalty. So लखोटिया सर, अनिल जी और नीलेश जी जो आपने केस कराए हैं, अगर बाई चांस उसमें कोई डिमांड डिटरमाइन हुई है तो आपको इस 128 का ए का बहुत ज्यादा बेनिफिट है. कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी नहीं है. बट नाउ लेट मी डीप डाइव इनटू द प्रोविजन. कौन कौन कवर्ड है और कौन कौन कवर्ड नहीं है. फ्रेंड्स, 128A में अगर आप चाहते हो कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगे तो क्या होना चाहिए? केस नंबर 1 हो सकता है अभी SCN आया था या स्टेटमेंट आई थी 73(2) में, एक ही बात है, SCN आया था और ऑर्डर पास नहीं हुआ था. पहला केस, प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो SCN आ चुका है बट ऑर्डर पास नहीं हुआ, वो केस भी कवर्ड है. सेकंड, SCN आया, ऑर्डर भी पास हो गया, पर आपने अभी तक अपील ऑर्डर नहीं आया है. एडजुडिकेशन का ऑर्डर आ गया है बट अपील या रिवीजन का ऑर्डर नहीं आया है, तो भी आपको ये बेनिफिट दे दिया. थर्ड, एडजुडिकेशन का ऑर्डर आ गया, आप अपील में गए, अपील का भी ऑर्डर आ गया, या रिवीजन कर दी डिपार्टमेंट ने और रिवीजन का भी ऑर्डर आ गया, इवन अप टू दैट स्टेज. लेकिन अभी तक ट्राइब्यूनल का ऑर्डर नहीं आया. अरे बाबा, वो किसी केस में नहीं आया. Even in that case, the benefit has been extended. क्या? Conclusion of proceedings. Conclusion of proceedings. अरे आपकी प्रोसीडिंग खत्म कर दी जाएंगी. कौन से साल की? 3 सालों की. 17, 18, 18, 19, 19, 20. अरे अभी तक नोटिस ही इनके इशू हुए. अब देखिए 19, 20 इसमें फॉल कर सकता है. आपको शोकॉज आया है लेकिन अभी तक एडजुडिकेशन नहीं हुई है. 18, 17, 18 आपका नेक्स्ट केसेस में फॉल कर सकता है. बी में ऑर्डर आ चुका है बट अपील का ऑर्डर नहीं आया है, राइट? या अपील का भी ऑर्डर आ चुका है 17, 18 का, अभी तक ट्रिब्यूनल से ऑर्डर नहीं आया है. सो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया है कि आप टैक्स पे कर दीजिए एज पर नोटिस, बट प्लीज रीड केयरफुली. Full amount of tax as per notice you are supposed to pay. जो अपील या जो भी रिट है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा. अच्छा, एक और मजे की बात, जब 53rd काउंसिल मीटिंग हुई थी, 53rd ही थी ना वो, सो उसमें 31/3/25 की डेट दी गई थी. बट जो सेक्शन 128 आया है उसमें लिखा है टिल द डेट टू बी नोटिफाइड. सो टैक्स पे कर दीजिए, अपील विड्रॉ कर दीजिए, तो क्या होगा? पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं लगेगा. सो कौन का? हाँ, बट इसमें कौन से केसेस कवर नहीं है? erroneous refund cases are not covered. So this benefit is not extended in case of erroneous refund. In case of section 74 notices, no, not at all. Only for the bona fide cases. हाँ, सेक्शन 74 के नोटिस एक तरह से कवर्ड है, वन वे. अगर आपको नोटिस 74(1) में आया था या उसका ऑर्डर 74(9) में आ गया, by applying the provisions of section 75(2) or by the appellate authority or the tribunal or the courts, that has been converted into 73 notice. I told you this power is given in section 75. Government has learned from service tax that many notices go waste because of the extended period of limitation being invoked, which was not applicable. They said notice khatam nahi hoga, that will get converted into 73. Agar aapka koi conversion hua hai, which is a very rare case, but if yes, it has been done,
the benefit of this section 128A will be provided in that case also. So अगर आप full amount of tax जितना notice में आया था पे कर देते हैं, अपील में है या रिट में है उसको withdraw कर लेते हैं, no interest, no penalty, pay only the tax amounts for the year 17, 18, 18, 19, 19, 20, only for section 73 cases, not for section 74 cases. Now, ये खत्म नहीं हुआ है. Let me connect with another PPT because the time was too short to prepare the PPTs for us. We have prepared it in parts so that at least I can discuss with you. Now, I need a minute of yours to connect with the another PPT. And I sincerely request and apologize for any typing errors or any mistakes in the PPT because those have really been prepared in a very rushy situation. Now, let me just open. Can you please share? Okay, हम 128A की बात कर रहे थे. There is further twist into 128. And what is that twist? If आपका डिपार्टमेंट अपील में गया है, अगर डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में अपील में गया है, पहली अथॉरिटी पे गया है, हाई कोर्ट में गया है, रिवीजन कर रहा है और उसने कोई एनहांसमेंट की है, तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ नोटिस वाला टैक्स पे करना है. You have to pay that additional amount of tax also. So, you know, there are certain points which are hidden. Let me open the PPT. It has come to my system. So, what I want to notice ka hi hai. So, then to that amount needs to be paid. But if there is any department is into the appeal and any application has been filed, then you have to pay that additional amount also. I just show you in the PPT also the same thing. Give me a while. So you can see how many changes are there in GST also, and that were expected also because we have already seen the council meeting. It is open and I hope it's Please open. ये भी नहीं खुल रही है. So you have sent me the full PPT. It is showing me the time of supply, 4 slides. Okay. All right. So let me just make the slideshow of it. Okay. And I hope you can see that. Viraj, is it visible, yes, the PPT? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, all right, sir. Thank you. And one thing more, which I just want to add, as we did 128A, once you take the option of 128A, then you cannot file the appeal. If any appeal is already filed or any writ is filed, that needs to be withdrawn. And if there is no appeal filed, then you further cannot go into the appeal. Now, let me come towards the other changes in GST. Section 17, subsection 5. Sir, ये change बहुत देर पहले आ जाना चाहिए था, but ये बहुत late आया है. क्यों? कब से सेक्शन 129, याद करिए, जब आपका सामान पकड़ा जाता है रास्ते में तो कितनी पेनल्टी लगती है? अच्छा, टैक्स पे करना पड़ता है कितना? 100% of the tax and 100% of the penalty. No, the section has already been changed and that has been made 200% of the tax to be paid as penalty. Friends, 129 में, 129 section में अब penalty ही है. There is no tax. Likewise, in 130 also, there is fine in lieu of confiscation. No tax amounts. तो जब उसमें tax amounts ही नहीं है, तो section 17, subsection 5, clause I किसको डिसअलाउ कर रहा था? ये सेक्शन तब था जब 129 में
taxes का percentage होता था 100% of the tax and 100% of the penalty. But now because 129 से penalties and have been taken away, only penalties are there, then the taxes have been taken away. Likewise 17(5) में भी change आ गया है कि okay, as per I, any tax in place of only section 74 needs to be paid in respect of any period. 74 भी कब तक? Up to the year 23-24, because after that 27 section 74A will come into picture, right? Likewise friends, 73 और 74 में भी change आया. Section 73 और 74 में financial year 23-24 तक ही ये section लगेंगे. The changes have been brought in. So 73(12) maybe they have mentioned that this section will be applicable only up to 23-24. Now one more change in section 54, which is refunds. Sir, बहुत dispute रहा है कि जिस चीज के ऊपर ड्यूटी पेड है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उस पे रिफंड नहीं मिलेगा. बट ये कहाँ था? 54 सबसेक्शन 3 के क्लॉज नंबर 2 में था. Right, first में. But now they have removed this proviso. क्यों? इसमें कौन सा फंड आता था? Only and only ITC का refund. Only and only ITC का refund. Now they have said, अगर your goods are subject to export duty, ना आपको ITC का refund मिलेगा, यानी on LUT basis. Neither you will be getting the refund of paid IGST. No refund will be granted neither on IGST payment basis nor of the ITC if your goods are subject to excise duty, export duty. So meaning thereby, by deleting the proviso from second proviso from section 54 subsection 3, they have added on a new subsection 54(15) to cover both the refunds. To deny the refund in both the cases, whether the refund is of ITC or of the taxes paid. Now, apart from that, let me touch upon a few more changes. Let me add on here. One second. Let me just create one. Yes. Let me open this. Okay, now apart from that, there are few more minor changes, like we talked about the sections pre-deposit. Let me come to it. Yes, pre-deposit. Friends, pre-deposit का amount जो maximum 25 crore था, first appellate level पे, that has been reduced to 20 crores. And even for the IGST Act, the similar change has been brought in from 50 crore, that has been reduced to 40 crores. So the maximum amounts for the pre-deposit, and yes, tribunal पर appeal file करने का time period, because it was written from the date when the president will be taking up the taking charge of its position. But now they have explained from a date to be notified, the tribunal's time period for filing of appeal will be starting. So I have almost discussed, and yes, if you are dealing anywhere with the insurance sector, बहुत ज्यादा litigation था. जो भी assessment insurance में कराई है, may it be LIC, may it be the various policies like Kotak Mahindra, where their Kotak Life, the other ICAI Lombard, the department has disputed on the amount of insurance ceded and the co-insurance premiums. Now in Schedule 3, they have particularly added that these are not to be considered as the supply. So जो 53rd meeting में change आया था, now that has been given effect to. So talking about the major changes of this act, and yes, one change for e-commerce operator, that only those e-commerce operator are liable to penalty under 120 to 1B
only those which are required to collect TCS. So not all e-commerce operator जिनके ऊपर TCS के provision नहीं लगते, 95 के operator etc. they are not be covered into it. One enabling provision has been made which states that the government has been empowered, again an enabling provision, कि principal bench of appellate tribunal के पास कौन से case heard होंगे और कौन से नहीं होंगे. That enabling provision has also been created in the GST in the relevant section which is 109 of CGST Act. So with this, we have covered all the major changes which has come in the GST provision. And I hope if anybody has any query, the major two changes that came was 11A, yes, 74A and 128A. So ये जो तीन नए section आए हैं, this will change GST. Section 16(4) का change बहुत important है, and जो कि एक beneficial change है owing to the council meeting, and such disputes like ENA etc. those have been given away with. And of course, the reduction of the maximum deposit amount that has been made. So over to you, sir. If anyone has any query, so they can ask. I'm not able to hear. Viraj, are you there? I think so. Viraj is not there. Yes, ma'am, I'm there, but there is no question as of now. There is no question as of now. इसके दो ही कारण होते हैं, मुझे नहीं पता कि सब किस में है. सब समझ में आ रहा है मैडम, वो ही वाला रीजन. सर जीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी सब समझ में नहीं आता है, you know. So there are always the loopholes, but given the time constraint and to the extent I could make the PPT in these hours, I have tried to do that because many things were in line. Many media persons were there to ask for the article for their newspaper or their channel, etc., etc. So besides that, I have tried to manage it. And yes, where I talked about the pre-deposit, let me clarify it, that the appellate tribunal deposit is also reduced from 20% to 10%. So at the maximum amount of 50 crore, with a maximum amount of 50 crores of the central tax to 10% with a maximum amount of 20 crores of the central tax. So amount भी reduce किया है और tribunal के लिए quantum भी reduce किया है, percentage भी reduce किया है. So this is again in respect of 53rd council meeting. Anything else, sir? One second, ma'am, I'm checking on YouTube as well. So in right, a minute, I will let you know. चलिए एक आधा पॉइंट तब तक मैं और डिस्कस कर देती हूँ. जो छोटा सा कोई ISD का अमेंडमेंट आई हैव नॉट टेकन. सो एक तो ट्रांजिशनल क्रेडिट में भी इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड बाय एन ISD प्रायर टू द अपॉइंटेड डेट, नाउ दे हैव रेट्रोस्पेक्टिवली दे हैव अमेंडेड. सी अभी भी ट्रांजिशनल क्रेडिट के पॉइंट्स वी आर गेटिंग अमेंडेड ड्यू टू द ओवरगोइंग लिटिगेशंस. एंड यस, द गवर्नमेंट हैज सेड दैट एपेलेट ट्रिब्यूनल इज आल्सो empowered to handle the anti profiteering cases from a date to be notified. So these were some technical changes which I didn't much elaborated upon, but yes, were part of the amendment, so I have taken those up too. Ma'am, we have one question from Amarji. Yes, please. So there is not any demand of tax in the order, only interest and penalty demand have been raised by the officer. Then in that case, section 128A will be applicable or not? सर उसमें ऑलरेडी एक क्लैरिफिकेशन 53rd काउंसिल मीटिंग में भी आई थी, दैट अकॉर्डिंग टू मी दैट इंटरेस्ट विल, I need to check that because here it says, let me open that. One second.
me open the 128A section. It takes too much time, you know, when yes. Okay, that was for threshold. Sir, according to me, if I talk about 128A, let me wait. If there is no, the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or the statement. A notice issued under section so and so, an order passed under section so and so, and the said person pays the, give me the copy of press release also, please. The said person pays the full amount of tax payable as per the notice as may be notified. The interest under section 50. Sir, according to me, a benefit for the same can be extended because, sir, that depends whether there was any tax demanded in the notice. Was there any tax demanded in the notice? If there was a tax demanded in the notice and that has been paid in full by the taxpayer, then 100% the benefit of interest will be available under 128A. Okay. Perfect. Aanchal I ma'am. think yes. जी sir. Aanchal ma'am, ये 74 में ऑर्डर बाय किया, अपील कर दी है, तो इसको 73 में कन्वर्ट जो अपील से करवाना है, मान लो ये जो डेट खत्म हो जाती है उसके बाद करवाते हैं तो फिर इसकी स्कीम से बाहर हो जाएंगे, पहले करवाना पड़ेगा। नहीं सर, आप 74A की बात कर रहे हैं? इस 74 में ऑर्डर बाय हुआ मैडम, अपील कर दी और वो 73 में 74 में ऑर्डर आया और अपील कर दी। 74 का ऑर्डर है। हाँ, उसको 73 में कन्वर्ट करवाना है कि 74 में ऑर्डर गलत हुआ है, तो कब तक करवाना पड़ेगा? जी मैम। सर, आप उसको, अगर आपका सेक्शन 75 के अकॉर्डिंग अगर आप उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, सो यू विल रिमेन एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ 128A। और सर वो कब तक कराना है? द डेट इज येट टू बी नोटिफाइड, बिकॉज प्रेस रिलीज में तो दे गेव कि आपको 31 2025 तक, 31/3/2025 तक उसको पे करना है, बट यहाँ पर दे हैव मेंशन्ड इन अ डेट टू बी नोटिफाइड। तो अगर वो आपका कन्वर्ट हो जाता है एनी टाइम, इफ यू गेट इट नाउ कन्वर्टेड, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर 128A। मतलब इसके बाद जो होंगे सेकंड अपील से ट्रिब्यूनल से, तो उनका कुछ नहीं होगा? नहीं सर, अगर आप ट्रिब्यूनल में अपील में चले गए हैं और तो भी ये बेनिफिट आपको अवेलेबल रहेगा। सर तीनों केसेस में ये बेनिफिट अवेलेबल है, चाहे अभी SCN आया ऑर्डर नहीं आया, सेकेंडली ऑर्डर आ गया है आप फर्स्ट एपिलेट पे हो, उसका ऑर्डर नहीं आया, थर्ड केस आपका ऑर्डर भी आ गया, आप फर्स्ट एपिलेट का भी ऑर्डर आ गया बट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आया, तो आप तीनों केसेस में एलिजिबल रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर का कोई नोटिस 74 में था but applying the provisions of section 75 that has been given effect converted into 73, then also the benefit of this section will remain available। but अगर कोई additional amount demand किया गया है owing to the departmental appeal, owing to the revision or the directions in section 75 के according, तो उसमें notice का tax amount plus ये जो additional tax है वो भी जमा करवाना पड़ेगा। So a second proviso to that effect has been कि proceeding drop तभी होंगी जब वो additional amount of tax भी deposit होगा, but benefit available है। Perfect, man. So I think with this we can. जी सर। सुसा भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, सुसा बेटा। हाँ नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछ रहा था कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बाद ये प्रोविजन आया ना 17(5) की जो ब्लॉक क्रेडिट के लिए 129 एंड 130 की डिमांड पर ITC अलाउड होगी। सर आई वांट टू जस्ट स्टॉप यू हियर। 129 और 130 में कोई टैक्स जाता ही नहीं है सर। 129 200% पेनल्टी जाती है,
130 में फाइन इन लिeu ऑफ कन्फिस्केशन जाता है, तो ये यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था 129 और 130। तो इससे कंफ्यूजन हो रहा है कि दे हैव रिमूव्ड दैट पोर्शन 129 एंड 130 specifically from the blocked credit under 75. Yes, sir. Yes, so this sir. creates Yes, a confusion. Yes. Sir, these are two changes. Let me Right. explain it. These are two changes. 74 के साथ लिखा गया up to 23-24, Yes. क्योंकि उसके बाद 74 ये आ गया Yes. कि भाई आपको ब्लॉक्ड रहेगा 74 में till 23-24। सेकंड, Yes. क्योंकि 129 130 वहां होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें कोई टैक्स ही नहीं होता, वो है ही पेनल्टी। सो दिस इज अ सेकंड चेंज, बट उन्होंने क्या लिख दिया 73, 129 एंड 130 टू बी रिप्लेस्ड बाय 73 अप टू द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो 129 130 उड़ा दिया, ये अलग चेंज है। और 74 जो है उसको अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 रखा गया है, उसको 23-24 रखा गया, ओनली 74। जी थैंक यू अश्विन लखोटिया जी। अनिल अग्रवाल जी, मुरादुल आर्या जी would like to request you both to say few words for this wonderful webinar. अनिल जी, आपसे शुरू करेंगे सर। आंचल मैम का तो शुरू से ही सुनते रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत फेवरेट है पूरे एमपी के लिए। ऑल माय प्लेजर सर, आप इतना रिगार्ड देते हैं। आनी पाई नहीं, पूरे इंडिया के लिए सर, पूरे इंडिया के लिए। बाकी डेलिवरेशन इतना बढ़िया है मैडम का, जो हिंदी इंग्लिश का मिक्स करते हैं मैडम। मतलब प्रेजेंटेशन तो है ही, बाकी लॉ का तो सबको पता ही है कि लॉ के ऊपर तो ऐसी पकड़ है कि जैसे आज बजट आया है तो आज मैडम की तैयारी दिख रही है, जैसे शेर बकरी के ऊपर झपटता है ना, मैडम ने वैसे पूरा झपट लिया बजट पे। मतलब बढ़िया डेलिवरेशन दिया है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच, दोज वर्ड्स आर टू हाई फॉर मी। आई हैव जस्ट ट्राइड, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे आपसे कुछ शेयर किया है, और इम्प्रूव करूंगी in the times to come, and I will share my improved PPT with you. Very well ma'am, very well. Thank you अनिल जी। मुरादुल आर्या जी, आफ्टर दैट जयदीप जी, आप भी ऑन कर लीजिए सर कैमरा। जयदीप पटेल जी। धन्यवाद मैम। जैसे अनिल अग्रवाल जी ने कहा, सही बात है कि हम हर साल देखते हैं, विराग जी व्यवस्था करते हैं कि बजट के सेम डे ही शाम को तैयारी करके बताना। मतलब समझता हूँ कि इट्स मतलब वेरी टीडियस जॉब। पलक पावागढ़ी जी ने भी इनकम टैक्स के प्रोविजन बताया, आपने भी जीएसटी के बताए। ठीक है, साथियों का सपोर्ट होता है, लेकिन बनाना उसको प्रेजेंट करना तो आपको भी पढ़ना तो पड़ेगा। बनाने वाले ने बना दिया तो अपन उसको जानकारी के तो आप भी नहीं इसको डेलिब्रेट कर सकते। और इस बार तो absolutely the team sport, they are still sitting with me in the office, and जो प्रोविजन ऐड होता जा रहा है, they are supplying that PPT to me. इस बार तो मेरे से ज्यादा they were worried. बजट में चेंजेस भी काफी थे। थोड़ा बजट नहीं था कि छोटा सा चेंजेस है, तो अपन 2-4 पॉइंट में, जैसे पलक पावाड़ी जी ने बोला कि सोचा 10-15 मिनट थोड़े प्रोविजंस होंगे बता दूंगा, लेकिन काफी लंबा था, 1.5 घंटे में मैं समझता हूँ पूरा कवर नहीं कर पाए, फिर भी कुछ छूट गया होगा। तो ये मतलब काफी अच्छी आप लोग की तैयारी है, और मैं उम्मीद करूंगा हम टैक्स बार एसोसिएशन में भी आपको भोपाल में हम किसी प्रोग्राम में इन्वाइट करें। भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर में तो मैंने सुना था आपका प्रोग्राम है, टैक्स बार का प्रोग्राम होगा, मैं प्रेसिडेंट हूँ टैक्स बार में, तो कोशिश करूंगा कि आपको उसमें भी इन्वाइट करें। विराग शाह जी का भी धन्यवाद कि कई साल से हमको इसमें जोड़ते हैं प्रोग्राम में, हमारे सदस्यों को इससे काफी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि सेम डे इतना डेरिवेशन मिल जाता तो कल का पेपर पढ़ने के समय तो काफी पता रहेगा कि ये हो चुका होगा। अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड द फोरम इज ओपन। वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, किसी को भी कुछ भी बोलना है तो प्लीज आप बोल सकते हो। जयदीप पटेल जी, आप अगर हो तो प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। संतोष गुप्ता जी हैं, संतोष गुप्ता जी। संतोष जी प्लीज। संतोष गुप्ता जी। जी भैया। आवाज के रूप में कुछ बोल दीजिए, अच्छे शब्द बोल दीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। अब आंचल मैडम ने इतने अच्छे ढंग से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, और दूसरी चीज उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो भी मान ली, हिंदी और इंग्लिश की मिक्स की। बस उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के लिए टाइम दिया। मध्य प्रदेश से हालांकि वो शुरू से जुड़ी हैं, और
आगे भी हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच आंचल बिल्कुल मैडम। सर, इट्स ऑल माय प्लेजर टू कनेक्ट विद मध्य प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन। विरांग जी, हमारे यहाँ मैडम का ऐसा है कि राज्य जी मंत्री जी का एक दर्जा होता है ना, वो अलग से, वो है मैडम का दर्जा। मतलब पूरा मध्य प्रदेश इनके लिए सुनने के लिए बेताब रहता है। तो मैडम का मैं विशेष रूप से यहाँ से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि इतनी अच्छी तैयारी, और मध्य प्रदेश के सभी साथी और गुजरात के भी सभी साथी यहाँ उपस्थित है। तो मैडम आपको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। आंचल मैम से क्वेश्चन था, आंचल से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो पलक पवागड़ी सर से करना चाहिए था कि इस बजट में, अभी जो बजट आया है आज, इसमें जो पोर्टल है उसको लेके कुछ लाना चाहिए था। पोर्टल को भी कुछ अपडेट कर देते, कुछ चेंज कर देते तो शायद बजट में ही दे देना, ताकि पोर्टल सर, चेंज करना चाहिए। आपकी परेशानी दुविधा में समझ सकती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश के मिनिस्टर वो सुने और गवर्नमेंट उसको जल्दी जल्दी से ठीक करे और पोर्टल अच्छा चले। Generally, I not seen income tax portal being so vibrant, but this time they have made every professional sit in the office for long hours. थैंक्स मैम। आज सुबह 7 बजे से बैठा हूँ ऑफिस में। देखा कैसे दर्द निकल के आया। थोड़ा पोर्टल सही चल जाता है। राइट, ये सर वही हाल हो गया जो स्टार्टिंग में जीएसटी पोर्टल का था, या तो रात को काम करो या सुबह अर्ली मॉर्निंग करो। सुबह भी गड़बड़ होने लगेगा, आप लोग सब सुबह बैठ जाएंगे तो सुबह भी गड़बड़ होने लगेगा। राइट सर। सर, विद जयदीप योर पटेल जी, परमिशन, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जयदीप पटेल जी, प्लीज अनम्यूट करिए सर, आप दिख रहे हो, वी आर नॉट एबल टू सी, प्लीज अनम्यूट। जयदीप जी हमारे गुजरात से जुड़े हैं सारे साथियों के साथ। जयदीप जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। आज हमारा पहला वेबिनार था और आप सबने हमें जो सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और सबने बजट के बारे में कुछ कहा, बट मैं तो यही कहूंगा कि मैडम जी ने जो सही में बजा के रख दी है, सही में बोलूं तो मेरे व्यू से, पर्सनल व्यू है, ठीक है, जो जिसको जो लगे वो, बट सही में सम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं है, जो है वो है। और वेबसाइट का तो सर ने बोला वो सही से सही बात है कि पता नहीं कब चलेगी, हमको कब तक बैठना पड़ेगा, कितने टाइम काम करना पड़ेगा, वो तो पता ही नहीं चलता। जी जी, जयदीप जी एक बात बता दूं कि मैडम ने बहुत ज्यादा कंटेंट दिया है, तो सारे प्रोफेशनल को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ नेटवर्किंग होगा और बहुत सारे वेबिनार और सेमिनार भी होंगे, फिजिकल भी और वर्चुअली। तो एक अलग नेटवर्किंग भी होगा, कनेक्टिविटी भी होगा। दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस बजट एज वेल। थैंक यू, थैंक यू। So I think with this we are concluding our today's seminar. So let me thank you each and everyone who has connected with this. हमारे सूत्रधार नीलेश विश्वास जी, जिन्होंने बहुत सारे एसोसिएशन और सारी संस्थाओं को कनेक्ट किया। Let me take name one by one. Income Tax Bar Association Gujarat, All Gujarat Federation of Tax Consultant, Fintex Chanakya by C.S. Amir Chaudhary ji, Madhya Pradesh Tax Law Bar Association, Tax Bar Association Gwalior, Tax Bar and Practitioner Association Chhatarpur, Tax Bar Association Guna, Commercial Tax Practitioner Association Indore, Tax Advocate Association Gujarat, जहाँ से हमारे जयदीप जी भी है, भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, टैक्स बार एसोसिएशन सागर, टैक्स प्रैक्टिशनर्स बार एसोसिएशन शाजापुर, टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन उज्जैन, टैक्स बार एसोसिएशन छिंदवाड़ा, टैक्स एडवोकेट एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन रेवा, and last two, Tax Law Bar Association Bhopal and Narmadapuram Harza Zilla Tax Bar Association. So we are thankful to each and everyone who has connected from each places, and there are many who has joined from south, north, east, each and every part of the country. We are thankful to all the attendees for making the webinar a great success. We have started sharp at 5 o'clock and we are ending sharp at 8 o'clock. So this is also a very great time management, I can say, from the speaker, from the organizer, everyone. Thank you so much, Aanchal ma'am,
to deliver the session on the very first day of your busy schedule. There are many media person already you have given the session, and many other commitment you have already made to the other organizer as well, and newspaper, there is a TV channels, and still you have given us time. We are very thankful to you, ma'am. So with this, we can conclude our today's session. Thank you so much all. Thank you, Aanchal ma'am. Yes, so with this we can conclude our today's session. Thank you all. Thank you once again. Thank you.